Hello everyone, welcome again Chit Chat with Harry. Today we have a very special guest, Pallav Purohit. Today we are going to talk about ये AI real world में work कैसे करता है. Let's understand it. Hi Pallav. Hey, hi Hari. So first off, thank you for coming here. It's pleasure to be here and begin with the questions. Take us back with your origin journey and how did the Bombay Software begins? So basically, we started back in 2018, Okay. where a group of childhood friends wanted to be together. So that was a thought that we had. So we went with an EdTech product and sold that product in Mumbai, where we started from. Okay. उसके बाद में once that was done, then we were like, कि अभी क्या करना है? So we thought कि चलो let's get into a service where we can cater to the dreams of other people, those who are not that sound in technology, अच्छा. and we can make sure that their dreams are also coming true. So Right. that is how we started. So 2018 we moved back to Ahmedabad and started the office here on SG Highway, and then Okay. it started altogether. So you have started with Ahmedabad only, or like No, we you have a were- name Bombay Software. So Yeah. what was the concept behind that? So basically, we were in Mumbai at that time, and we had our product called Campus By, which was basically for education institutes. Okay. So service line में आने के लिए we were searching around, and what happens is like before you choose a name, you need to see कि domain available है कि नहीं. So apparently Correct. we found the domain also. So we checked कि Bombay Software, all of them were available. So we thought कि let's start because it will always give us that particular history that we अच्छा. all started from a flat in Mumbai as friends, and then we are where we are at the moment. So कौन है founders आपके मतलब साथ में? So we are total 3 founders at the moment. Arpit, he is the founder and the CTO. Saurabh is the founder and CFO, and myself Pallav, and I take care as a CEO for the company. Okay. And what inspired to become an entrepreneur? So we come from a tier 3 city, and we realize that there's a lot of gap between the education and the upbringing of people in tier 3 versus tier 2 and tier 1. So we were trying के कहीं पे तो bridge करना पड़ेगा इस चीज को Right. ताकि it becomes normal for a person who is coming from a small town also to perform well, provided Okay. that he's good enough in skills. So Right. this is how we started thinking, and then we also had that thought कि friends से तो सबको साथ में रहना. So we रहना knew that चाहिए. part कि if you are doing job, then it would be difficult for us. So better why not to use our skills and get back into something which is of interest of everyone. So Right. all the founders comes from different background. Arpit is a tech person. Saurabh was into DevOps, and he was looking into big 5 companies, and I was into consultancy. Okay. So हम लोगों ने खुद ने कुछ 6 years का experience पहले लिया market का in order to realize कि market में क्या चीजें हैं, what is the gap that we can cover around, and Okay. then we started our venture so that we can give the right thing to the people, those who are actually investing. So the main thought that the company has is like कि anyone who is investing right in Okay. their product, they are investing for a return. Okay. So that is one thing that we have always taken care of, because we all also started as a product company only. Okay. So वो थॉट हमेशा दिमाग में रहता है, एंड उसी वजह से क्लाइंट्स का रिटेंशन हमारा रिलेटिवली बहुत हाई है, because we keep on guiding them if they are going into a wrong direction, irrespective of whether we are getting returns from them or not. वो हमारा मैटर नहीं है, but we know that if they are able to earn more, they will be able to give more work to us. So Right. वो thought हम लोगों का रहता है, and most of the company we are basically the tech alliance to them. Okay. So we tell those companies के आप अपना business करो, and you need not to worry about the tech part. You leave the tech Okay. part on us, so that jointly we can make a better product out. Okay. Yeah. Okay. So आपका पहला प्रोडक्ट क्या था? पहला product was into education. Okay. So we were trying to create a centralized education platform for Pan India. Okay. So think of a case that there is a student who is in some village in UP, but is very good in mathematics, and Okay. there is one company which is sitting in Pune, and they are looking for statisticians, right? Okay. And someone who has a very strong command on mathematics. So इन लोगों को bridge करने का main thought था हम लोगों का. अच्छा. But it would all start from a institute. Let's say अगर मैं college की बात करूँ, तो college का एक अपना close environment था, ठीक है? Then different colleges falling into the universities, then different universities falling into a state, and different state falling into the central government. So this is Okay. what we thought of.
we could not find that, to be honest, as a market fit here, क्योंकि Okay. maybe we were ahead of its time. But Right. there are colleges those who are still using today right now because it comes with a lot of transparency. Right. So colleges are using, but we realize that we need to have a pivot also in the business in order to sustain the Okay. inflation and everything which is coming in the market. So this is how we started, and currently the product is still running, but जो clients है उनको we are helping around. That is Okay. what we do. But now it is not more, no more our main focus of Okay. business line. Bombay Software is the main focus, and plus campus by जैसे we have couple of more products that we have ventured into, including AI products also. Okay. So अभी market change हो रहा है तो we also have to make Right. changes. So जब आपने company start किया तो is there any mentor? When we started, there was no mentor as such, but what we did is like the people with whom we were working earlier, right? We took them Okay. as our immediate mentors. Okay. Then our company got incubated in NASCOM. 10,000 startups में थे हम लोग. तो वहाँ पर जो लोग थे जो पहले से fraternity में थे, अच्छा. those were the people those who were helping us out. But it is very difficult to choose the right mentor because mentor got a lot of people they have to train, right? So Okay. उनके लिए स्टार्टअप्स में स्पेसिफिकली ऐसा होता है कि इफ आई एम ए मेंटर एंड आई एम मेंटरिंग लेट्स से 10 स्टार्टअप्स, और मुझे 10 स्टार्टअप्स में से एक स्टार्टअप भी अगर आगे बढ़ गया तो आई एम ए गुड मेंटर. Okay. बट द पॉइंट इज लाइक 9 स्टार्टअप्स आर देयर जो वो चीज अचीव नहीं कर पाते. तो वी हैड टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट कि कौन से मेंटर से क्या समझना है. सो वी Right. हम लोगों ने थोड़ा मेंटर और बढ़ाया अपने एंड पे. And अच्छा. then eventually we started. But yes, there are mentors. Even today we have mentors with whom we speak. We have people those who are like who did artificial intelligence PhD back in 1998. वैसे उतने पुराने अच्छा. लोग हैं हमारे पास. So they keep on telling us what needs to be done. And then we have people those who are serial entrepreneurs and investors also. So they give us a point of view कि एक investor किस तरीके से देखेगा in case if we are raising funds in any product. So Right. there are people around helping Right. us. So next question is, I've seen like everyone is now talking about AI and all. So I want to understand when Bombay Software realized that we are into the AI in the real cases. So AI अपने आप में ऐसा है ना कि it surfaced very recently, specifically after ChatGPT. Right. ChatGPT के बाद में ऐसा हो गया कि even our parents also understand AI today, right? Right. So they have made it public, so publicly available वो लोग कर पाए, और उस वजह से people have realized कि AI आ गया है market में, right? But AI was there earlier also. So if you have Okay. seen like Adobe के अगर आप products देखेंगे, Photoshop और ये सब, उन सब में जो अपन जाके जैसे वीडियो है इसको आप एडिट करोगे, यू विल जस्ट क्लिक ऑन सम बटन और पीछे की चीजें चेंज हो जाएंगी. Apparently those are like part of AI only. So AI बहुत टाइम से है मार्केट में. आप कब से कर रहे हैं मतलब बॉम्बे सॉफ्टवेयर? I guess we got it in 2018 late. अच्छा. So we got a client from China, and they had their product which they wanted to revamp. Okay, so they were doing business in Japan, like close to 600 million की valuation पे थे वो लोग. So they wanted us to look into it because company dilute हो गई थी. So bankruptcy के बाद में we got their devices and they wanted us to break those devices because वो OEMs थे. And then when we started working on it, we realized कि market अब बदल चुका है, right? So it is not just clicking on screen. Okay. So we realized, we thought कि इसके अंदर audio भी होना चाहिए. And when that audio came in picture, because China based client था तो उसमें Mandarin और Cantonese was mandate, and Google itself was not good enough to give us the multilingual capabilities. तो हम लोगों ने Google के ऊपर हमारा टॉप लेयर बनाया, और वो लेयर जो है वो AI के थ्रू हुआ, जिसमें we filed patents for our customer, for our clients, right? So what it did is like it used to take the answer out from Google, then put that into our funnel, और हमारे funnel के हिसाब से actual output आता था, which was better than Google. Okay. Right? So that is how we started with the first AI platform that we created when there was nothing around. हाँ नहीं था मतलब I think शायद चैट जीपीटी की बातें चल रही हो, आई डोंट नो. मतलब चैट जीपीटी तो नहीं, ना अभी आया ना. इट टुक सम टाइम, लाइक इतना जल्दी नहीं, मे बी लाइक 3 years मे बी हुए होंगे. 18 में आई थिंक there was nothing मतलब आई नो कुछ था ही नहीं. मतलब आई रिमेंबर लाइक 2018 19 yes नहीं था. There was nothing around, and what happened is like कि when we created that particular multilingual platform, we realized कि इसको हम बहुत जगह use कर सकते हैं. तो the plan was to use it to B2B.
ठीक है. अच्छा. सो आप सोचिए कि यू हैव एन एप्लीकेशन एंड यू आर यूजिंग अवर प्लगइन, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो मल्टीलिंगुअल होगी. Oh. And we were of the level that we used to bring another language on the system within 7 days. Oh. तो हम लोग कोई That भी is लैंग्वेज हैंडल great. करने की कैपेसिटी में आ गए थे वो प्रोडक्ट बनाने के बाद में. एंड वी क्रिएटेड सम प्रोडक्ट आल्सो व्हिच आर रनिंग राइट नाउ. Oh. So we created a application which is very similar like Duolingo, but the advantage that we had is like at that time we had an option to read the dialect also. So if you अच्छा. speak in Gujarati and if you don't use the right dialect, right, तो आपको गुजराती आती है लेकिन परफेक्ट नहीं आती है. Okay. सिमिलरली चाइनीज में मैंडरिन और कैंटनीज बोलेंगे तो हल्के से डायलेक्ट में वर्ड चेंज हो जाता है, राइट. Yes. सो हम लोग वो डायलेक्ट हम लोगों ने देखा कि देयर इज अनदर गैप अराउंड, सो वी क्रिएटेड ए एप्लीकेशन कॉल्ड एज आर्गोट, and that application comes with complete gamification. अच्छा. And yeah, that is what we are doing at the moment. Now we are going with hands free. So Okay. हम लोगों ने अभी की जो जनरेशन है उसमें ऐसा है कि people do not want to open the application in order to learn is what we are Okay. sensing. So now we are going with hands free. So Okay. while you are driving आपने ऐप ऑन कर लिए और आप हैंड्स फ्री आप बात कर पाओगे सीधा बॉट से और आप लैंग्वेज सीख सकते हो उनके साथ में. सो आपकी ड्राइविंग के टाइम पे आपका वो काम भी हो गया. सो दैट्स द नेक्स्ट Okay. थिंग that we are coming up now Right. in that application. So tell me the top brands you have worked with. Even tell me the top brands Bombay Software has worked. So basically when we started we had to work as a subcontractor, right? But because we were already there in market, people knew us. We worked with multinational companies and we also work with startups. Okay. So fraternity में सब लोग हमें जानते थे और जब सबको पता पड़ा कि we are into the market now doing business, तो हम Okay. लोगों को हमारे जो पुराने ओनर्स थे जिनके साथ हम काम करते थे, they started giving us more reference कि आप बात Okay. कर सकते हो. So I remember the first company that we worked was building the front end for Kochi Metro. Okay. तो कोची मेट्रो का जो POS है वो पूरा हम लोगों ने बनाया था फ्रंट अच्छा. एंड. दैट वाज अ बिग प्रोजेक्ट दैट वी स्टार्टेड विद. Oh. Then the next one that we got was we worked for Apple. Okay. So Apple में भी again with a alliance we worked. So Apple के साथ काम किया है. उसी का कंपनी के साथ में हमने Motorola के साथ काम किया. So Motorola का पैन इंडिया का जो ऑनलाइन जो प्रेजेंस है Online उसमें presence. वी आर वर्किंग एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर टू द मेन अलायंस. Okay. उनके साथ हमने काम किया है. वी हैव वर्क विद सम टॉप फार्मास्यूटिकल फर्म्स हियर लाइक Zydus के साथ हमने काम कर रखा है. अच्छा. Then we have worked with some big laboratories also here like Supratech if you have heard of. So उनके साथ में we are very closely working around. So yeah, and then couple of companies outside. अगर आदित्य बिरला ग्रुप के साथ में हमने काम किया हुआ है. So in different capacity we have worked with those people. But I would say जैसे Apple Motorola है उनका तो right from scratch हम लोगों ने starting में काम किया था. And so far so that it was recognized by PwC. जब हम लोगों की quality test हुई तो PwC ने quality check किया था. अच्छा. And then we were one of the 4 companies in the country those who had direct internal API access of Apple USA. Oh. So that is how we started. Again, main thing that helped us is the contact that we had and the sincerity that we had while we were getting into the business, because we had a very clear agenda कि हमें लोगों को help करनी है rather than looking more on the money side. We knew that money will always be a byproduct that will come by default if you are sincere enough in your work. Right. That's nice. So, if I ask, how did you expanded Bombay Software from local startup to multi-location company? Yes. So what happened is like, as I said, that we started in Mumbai and cost of living and everything was substantially high. We had to keep our bars low. So we moved back to Ahmedabad and set up the second office over here. Post to that, we got ourselves into OEM and IT, which is very much a focus in China. So we got one satellite office in Hong Kong that Okay. deals into any kind of hardware that we might be trying to bring Okay. from there. So it becomes easy for us. We have a satellite office in UAE, and we have a full-fledged office in Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yes. So this all started with us going to different exhibitions and meeting new people, and then finding out, okay, we got a new opportunity. Then why we can't start with. So as on today, Saudi Arabia is coming out very strong, because long back they were giving everything as an outsource, Mhm. which was going mostly to UAE, right? So Right.
अभी सऊदी अरेबिया का जो 2030 का जो टारगेट है, दैट इज साउदीआइजेशन, वेयर दे वांट एवरीथिंग टू बी हैपनिंग विद इन सऊदी अरेबिया, बिकॉज दे हैव रियलाइज दैट पार्ट दैट सिर्फ ऑयल एंड गैस से चीजें नहीं हैंडल नहीं होगी, तो दे चलेगी। आर मेजरली इनटू टूरिज्म। तो वो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस करे। इफ यू हर्ड ऑफ, तो जेदा टावर जो आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी वर्ल्ड longest tower Oh, that will surpass Burj Khalifa also. So they have already worked on it. Then the line करके जो NEOM में आ रहा हूँ, कि NEOM projects बहुत heavy है. So they look for people, those who come from outside, and give them support. So AI related is something that we are also focusing, trying to talk to the government and everyone. okay, And wherever they feel like that, okay, there is a scope, then we get into it. okay, So that is why we plan to have our main office in Saudi Arabia rather than having office in Dubai or somewhere else. okay. So this is how we have like 3 or 4 locations at the moment with us. And still any upcoming locations, or have you planned for कि अभी यहाँ पे और खोलने वाले future maybe 5-10 years? Yeah, absolutely. 5-10 years में तो definitely, you know, we have to target. So हमारी industry में US एक बहुत major role करता है, right? But for Bombay Softwares, we do not have US as the major business center for us. हम लोगों का target mostly Europe रहा है, because we know अच्छा। everyone is in US, right? Right. So that was a strategy that we did कि Europe को target करो। हमारा major काम Europe में handle होता है आज की तारीख में। Okay. But US is something that we will have to tap eventually, right? Okay. But because of AI, there's a lot of changes that are happening around. So the productivity has gone up, to be honest with you. So हम लोग जो काम let's say 3 दिन में करते थे, we are able to do that in 1 day and without any rework. So Okay. when that particular thing happens, तो client को चीजें जल्दी मिलती है, then demand versus supply में we have to focus very much, right? Sales team have to focus on that. All the team members are basically billable and all. So उस वजह से कुछ strategy pivot रहती है, and Okay. AI is coming so strong that every new morning I wake up and I read my news, right? So news देख रहा होता तो कुछ नया आ गया होता है. सही बात So है. it is evolving, and accordingly we have to do the pivot. So creating more offices in foreign land, is it going to bring business to us? Okay. It was one of the main reason to bring more business in India earlier, but abhi aisa nahi hai, because people have realized over the period that okay, this is something which is going to come, and Okay. this is something which needs to be done. So people have realized, so वो India से भी handle हो पा रहा है. हो पा रहा है That's ना? the case. Okay. So tell me the biggest myth about the AI, like that founders are failing to starting a company. Yes. So biggest myth about AI is basically ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया में जो मार्केटिंग हो रही है और उसका जो प्रमोशन हो रहा है, वो इतना नेक्स्ट लेवल का हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि AI विल डू एवरीथिंग. Correct. सो A to B जो भी करना है वो सब कर लेगी. आज की तारीख में जैसे AI आप बॉट से बात करो और बॉट को बोलो कि XYZ प्लेटफॉर्म पे जाके एंड जस्ट बुक माय फ्लाइट टिकट, एंड देन किसी ABC प्लेटफॉर्म पे जाके अकॉर्डिंगली मेरे होटल भी बुक कर लेना, एंड दिस आर माय पैरामीटर्स, ये सब कर लो. सो अभी AI उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है. नहीं सो है. AI is becoming good, but you have to give the task in small chunks. Okay. So if I have to create a page based एक वेब पेज बनाना है, एक डैशबोर्ड बनाना है मेरे को यूजिंग AI, so अगर मैं उसको सारे prompts एक साथ दे दूंगा ना, तो वो hallucinate कर जाएगा. अच्छा. So I have to give prompts to a level, let's say मैंने 10 prompts दिए उनको और वो Okay. hallucinate करे, तो I might have given them 2 prompts, maybe 3 prompts, but वो better होता जा रहा है. Better हो रहा So है. आज मेरे को 2 prompt दिए तो it give me the right output. Maybe 1 month बाद में मैं 3 prompt दूंगा तो वो समझना चालू कर देगा. Right. The good part is like because of Gen AI, they are able to understand what we are writing, and Right. that's the beauty. So वो पुराने conversation और current conversation को connect करके, and he tries to come back with some answer which is very much in favor of what you are thinking around. Right. So that's the thing. So people need not to worry about ki how AI is going to break the market. It is not going to break the market. It is going to upscale. वो एज ए कंपनी आप अपस्केल ही करोगे, बिकॉज आपको रिवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एज केसेस जो आपके वो AI ने हैंडल कर लिए. सो हैवी लिफ्टिंग जो होती है कोडिंग के अंदर और इन सब चीजों में, प्रोजेक्ट जो हम लोग बनाते हैं उसमें हैवी लिफ्टिंग विल बी डन बाय AI. देन ऑल वी नीड टू डू इज लाइक वी नीड टू डू द कॉस्मेटिक वर्क. ओके. कि उसको थोड़ा गाइड करना है कि ये कर ले, वैसा कर ले, इसको ऐसा कर ले. गाइड करना जरूरी है, और वो गाइड करने वाली टीम जो है, दे विल बी डेवलपर्स, बिकॉज कहीं पे कोडिंग लेवल पे उनको गाइड करना होता है. बट बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं, दे आर ऑल्सो एबल टू क्रिएट डैशबोर्ड्स. आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. Okay. So Pallav, tell me 3 industries. Which 3 industries will transform by AI by 2030?
So there are a lot of industries that will get transformed मेरे हिसाब से, but the major one that I would say the first one is healthcare. Okay. Very strong. So AI is able to detect the situation of the images that are coming from machineries, Okay. right, for any patient to the level which cannot be done by Okay. even doctors. So AI is going to definitely help around there. और उसके साथ में because simulation is something which becomes very easy with AI, right? कि आप Okay. 4-5 पैरामीटर पास कर दिए और उसके बाद यू आर जस्ट ट्राइंग टू सी के व्हाट इज हैपनिंग, राइट? Okay. So AI is going to definitely help around there. So people will have a better life. Now Okay. it could be, when I say healthcare, it could be regarding fitness related भी हो सकता है Okay. कि suddenly food क्या intake करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाने से क्या होगा, उसमें AI will start guiding you कि आपको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए basis on your BMI score and Okay. anything, right? So एक तो वो है, and the second one is I think IT itself will have a transformation. So earlier Correct. we used to get like something new in every 5 years. Okay. ठीक है, 5 साल, फिर 3 साल में, और अब तो ऐसा हो गया कि साल भर में नया आ गया सब, Change ही हो रहा है. राइट? हाँ. सो pivot हम लोगों की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, बट इट इज अ गुड pivot that is happening, I would say. Okay. चीजें अच्छी ही होने वाली है. So this is the second one that is going to be there. First one मैंने आपको बताया, that is the healthcare. Healthcare. And I think and I know basically the third one will be the back office work. So KPOs and BPOs का जो काम होता है, Okay. that will be done. And more or less if you see कि वो already start हो चुका है, but Okay. उनके लिए there is a हाई चांस कि उनके बहुत सारे प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएंगे. तो कहीं पे भी जहाँ वर्क फ्लो आता है ना, कि किसी भी चीज को करने का कोई प्रोसेस अच्छा. है और वहाँ ऑटोमेशन की पॉसिबिलिटी है, तो AI विल टेक द चार्ज दे. Okay. So this So will I be think the third industry. Customer support, sales, that Yes, customer support. marketing, So everywhere. yes, yes, absolutely. So abhi again with the help of Gen AI, people have created platform where they can give you a call right away, and then Okay. AI will talk to you और आपको पता भी नहीं पड़ेगा AI अच्छा. बात कर रहा है. Mm-hmm. So that is already happening. People Okay. are using that for hiring purpose कि आपका फर्स्ट लेवल का जो इंटरव्यू क्या लेना है? होता है, वो अच्छा. आपका वो AI इंटरव्यू ले लेता है. आपने AI को बोल रखा है कि इस टाइप की प्रोफाइल है, इस टाइप का हमारा JD है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने, Okay. वो कॉल कर लेगा आपको खुद ही और आपसे बात करके और रिटर्न समरी दे देगा HR टीम Okay. को. सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. एंड सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो कस्टमर सपोर्ट के अभी जब होते हैं तो कॉल्स होते हैं, तो पहले वो आता था, पहले 1 दबाइए 2 दबाइए ये सब आता था, राइट? हाँ. सो अब वो नहीं अब है. नहीं सो होता यू ना. जस्ट हैव टू स्पीक बिकॉज द सिस्टम इज एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ वेरी अच्छा. सून द सिस्टम विल एबल टू गेट इनटू द डेटाबेस एंड एक्सट्रैक्ट द डेटा व्हिच इज समथिंग दैट यू आर लुकिंग एट. Okay. तो वो वाला पार्ट जो है वो डेवलप होने में टाइम है, विच आई वाज सेइंग कि AI जो मिथ की बात की थी आपने, Okay. उसके लिए कि वो होने में टाइम है, बट वो क्या नहीं होगा ऐसा नहीं है. इट नहीं विल है. डेफिनेटली हैपन बाय अच्छा. 2030. तो डेफिनेटली इट विल हैपन. Okay. And if I talk about AI for the global issues, so AI का क्या पार्ट अभी है कि जो जिसकी वजह से वो ग्लोबल इश्यूज या क्लाइमेट चेंजेस या हेल्थ केयर में क्या चेंजेस आए? सो बेसिकली अगर आपको बात बताऊं मैं, सो वी आर वर्किंग विद वन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन US where we are working on genes. So Okay. what we do basically is like we try to understand the genomics, the structure of the DNA of a patient, and try to compare that with other patients, those who are there. So Okay. genetical issue और जीन्स की वजह से आपको क्या इशू हो सकता है उसको हम लोग पहले से पता कर सकते हैं. अच्छा. So that is something which is again based out of AI, which we are currently working Okay. on. So this is going to help ki, okay, basis on the facts and the analysis that the AI is doing, let's say someone is having a high chance कि उनको डायबिटीज हो सकता है basis on the structure, right? Okay. So अभी से हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं that what kind of food they have to take in order to make sure कि उनको डायबिटीज एक्चुअल में कभी हो नहीं. अच्छा. बिकॉज उनका जो स्ट्रक्चर है DNA का वो इस टाइप का है कि there is a likelihood कि उनको शायद डायबिटीज हो सकता हो है. सकता है. Right. जस्ट गिविंग दिस एज एन एग्जाम्पल. बट Okay. कैंसर का होता है, राइट? Okay. कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा है जहाँ पर AI and doctors are working very hard in order to come up with something that can help. So again उसमें simulations और ये जो भी है, Okay. everything can be done by AI at that time. Okay. And do you think like government should have to involve in AI regulations and all? Absolutely, because see AI is nothing but it is a blank canvas. Right. आप उसको जो बोलोगे वो करेगा.
Now it's on us to know कि हमें उसको क्या बोलना है, Okay. right? So it can work definitely in favor of the world, Okay. civilization, but it can also work catastrophically also. Okay. कि अगर आपने उसको गन दे दी हाथ में और बोला कि ऐसे बंदूक चलाते हैं, तो वो तो गोली चला देगा, चलाएगा ना. उसको नहीं पता कि गोली चलाने के बाद क्या होता है. So Okay. वहाँ पर that is the area जहाँ government needs to be very very sensitive. Okay. So because social media और ये सब चल रहा है, right? And now अगर आपने Apple का WWDC देखा होगा, तो now they have come up with a feature where you can try on the clothes, right? Right, हाँ. So something that we did 2 years back, Apple अभी लेके आया उस अभी चीज लाया को. है, हाँ, So उसमें आप कपड़े चेंज करके चेक कर सकते हैं, right? So उसमें कैसा होता है कि what kind of clothes you are putting on the body and whether it is your body or someone else's body, right? Okay. So उस वजह से there are things where things become आपके Okay. लिए तो वो एक इनोवेशन है, बट किसी और के लिए वो एक ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन हो सकती है. सो Right. that is the area where government needs to come and they have to regulate and they have to put the policies very clear कि something that you are doing should not be considered as a harassment to somewhere else. So laws और वो सब बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए. Otherwise there is no limit to the imagination of people, and if everything goes to AI, then we don't know what will happen. राइट. सो नाउ अभी कैसा हो गया कि एआई की वजह से क्या हो गया कि हर कंपनी, हर एवरी बंदा, एवरी स्टार्टअप थिंकिंग अबाउट और दे आर क्रिएटिंग एआई प्रोडक्ट्स. सो हाउ वी कैन वैलिडेट दैट प्रोडक्ट इज रियल और हाउ वी कैन सिक्योर आवर डेटा? See, basically, AI itself is very difficult to achieve because it requires a lot of learning. राइट. ठीक है. So when you talk about let's say chat GPT, उनको खुद को 10 साल लगे होंगे आराम से in order to get the entire data of the world and put that into a machine learning part, and then accordingly now the bot is able to respond. Chat Okay. GPT अब response करता है, right? So if someone is saying कि हम लोगों ने AI बनाया है, then we have to realize कि क्या उन्होंने actual में AI बनाया और they've just used let's say APIs of let's say chat GPT की API यूज करके हाँ. मैं आपको कुछ डिलीवर कर रहा हूँ and I'm saying कि मैं AI में काम कर रहा हूँ. तो आपके लिए तो एंड ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आपके ऐप में, आपके प्लेटफॉर्म पे काम हो एआई रहा है. चलना चाहिए, तो चल रहा है. ठीक है. सो देयर आर टू सेट्स ऑफ कंपनीज देयर. एक कंपनी Okay. वो है जो एग्जिस्टिंग एआई को इम्प्लीमेंट करके देती है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और एक कंपनी है जो एग्जिस्टिंग एआई बना रही है. अच्छा. right? वो जो कंपनीज वो बना रही हैं, दे आर वेरी लेस. ओके. ठीक है. सो आपके पास True. में अगर कोई प्रमोट करके आता है या कोई ऐसा हाईलाइट करता है कि वी हैव डन समथिंग, देन यू कैन गेट इनटू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट ये चीज फैक्ट हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है कि कोई भी एआई का मॉडल बना के उसको एक प्रॉपर प्रोडक्शन लाइन में लेके जाने में देयर इज अ सब्सटेंशियल टाइम ऑफ R&D दैट्स रिक्वायर्ड, और वो हर कोई नहीं कर पाता. Correct. और उसके लिए आपको डेवलपर्स भी नहीं मिलेंगे. नहीं मिलते There are very less developers in the country at the moment. I guess we had a data like 2 years back. There were only 2000 AI developers. ओके. 2000 ही हैं. और आप सोचो कि कितने, मतलब you must have like lakhs में डेवलपर्स होंगे इंडिया में, बट जो एक्चुअल कोर एआई पे काम कर पाते हैं, they are तो very नहीं less. है. Right. So True. that's the thing. And because of this, now the trend is booming for the AI agents. Correct. So how AI agents are solving the digital work problems? So AI agents are still currently evolving, but yes, they will evolve. As I said कि KPOs और BPOs जो हैं उसके अंदर agents will come and take action. So that is the area where agents will come and play Okay. their role, because they Okay. will be able to listen to the end user and they will Okay. be able to act on behalf of the end user. Okay. So to give you an example, when we started discussing about this podcast, and I was thinking of कि अच्छा ये agents अभी तक है नहीं, but today when we are having this podcast, I guess 1 week back ChatGPT ने उनका agentic AI लॉन्च कर दिया. लॉन्च कर दिया. अगेन वो agentic AI बेसिक चीजें कर लेता है. इट कैन बुक योर टिकट, अच्छा. राइट. उसका खुद का ब्रेन है, उसका खुद का कंप्यूटर है, जिस पे जाके वो ऑफलाइन, मतलब आपके फ्रंट में नहीं हो, बैकएंड पे वो काम कर रहा होगा, वो आपके बिहाफ पे Okay. सर्च कर रहा होगा, एक्शन ले रहा होगा. बट अभी इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि वो 2 डिफरेंट डेटाबेसेस में जाके चेंजेस कर लेगा. करे. But eventually that is going to come. So agentic AI is something which is definitely going to come and Okay. help us out to look into something where we should be focusing on. Okay. Right? जो बेसिक चीजें वो खुद कर लेता है और बाकी चीजें हम करते हैं. So Right. to give you an example, अगर if you talk about food industry, right? So food industry में
लेट्स से अगर एआई आता है, राइट, रोबोट आते हैं या फिर कोई भी, सो व्हाट दे कैन डू इज लाइक दे कैन डू द बेसिक थिंग. वो आपके चॉपिंग कर लेंगे, आपके मसाले रेडी कर लेंगे, वो आपको गैस पे चढ़ा के भी दे देंगे, लेकिन गैस पे कितनी देर चढ़ाना है और उसका टेस्ट किस हिसाब से सही होगा, सॉल्ट कितना डालना है कितना नहीं डालना है, ये एंड में एक ह्यूमन ही कर रहा होगा. ओके. सो दिस इज द गैप, राइट, कि वो Okay. बेसिक हैवी लोड लिफ्टिंग तो कर लेगा, Okay. लेकिन उसके बाद में एंड में आपको वैलिडेशन के लिए यू विल नीड अ ह्यूमन. सो Okay. दिस इज द फ्यूचर ऑफ एआई वेयर ह्यूमन विल बी रिक्वायर्ड, एंड बिकॉज Okay. मोस्ट ऑफ द वर्क इज एबल टू बी डन बाय एआई, तो आपके पास में इतना स्पेस होगा कि आप नई चीजें सोच सकते हो. Okay. अभी ऐसा है कि यू आर टू मच ऑक्यूपाइड विथ योर ओन वर्क, यू आर नॉट एबल टू सी कि और क्या बेटर कर सकते हैं. Correct. Right. So tell me that like some top use cases of AI agents. Even you have built that. That is Yes, so also. AI एजेंट में जैसे अगेन फर्स्ट वन तो वो हो गया कि टेलीफोनिक AI है, एजेंट है दैट कैन डू हाँ. थिंग्स. देन एजेंट दैट कैन डील बिटवीन टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जस्ट बाय गिविंग द प्रॉम्प्ट्स, Right. right? And then an agent that can listen to what you are trying to say and then exploring the world and getting back to you. अभी वो text पे हो रहा है, but उसके Right. साथ में action item also. Okay. So to give you an example, let's say आपकी कंपनी है वो एक HRMS यूज करती है, right? Mm-hmm. So you are just asking कि if you have your agent name called as Roxy, right? So you are saying, hey Roxy, can you just look into my leave balance that I have at the moment? So it will respond back that you have 5 leave balance. Okay. Okay, can you just book my leave for the month of November from 21 to 24 and put an reason that I am traveling abroad? Can you do that? तो वो क्या करेगा कि वो वहां से आपकी बात सुन के जाके उस प्लेटफॉर्म पे आपके बिहाफ पे लीव भी अप्लाई कर देगा. Wow. दिस इज द एजेंटिक वर्क. उस वजह से कैसा हो रहा है दैट यू नीड नॉट टू गेट इनटू द प्लेटफॉर्म. आपको स्क्रीन ओपन करके और उसके अंदर सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं है. पूरा एजेंट कर लेगा. तो GUI जो बोलते हैं अपन, राइट, हाँ. तो GUI का यूसेज apparently is going to get less and more agents are going to be there. So Okay. if I give you the example, the goggles that I'm wearing right now, it is Okay. Meta AI. So अच्छा. since the day I Nice. purchased this, तब से मैं AirPods पहनने बंद कर दिए, because Okay. I have my speaker, I can listen, I can see things, I can ask whatever I want to do, and that is going to help. So even as a developer, when we are हम लोग जब काम कर रहे होते हैं और स्क्रीन पे कोई एरर आता है, then we just ask AI कि ये एरर क्या है. पहले कैसा Okay. होता था कि we used to go to Stack Overflow, उधर जाके सर्च करते थे और आंसर मिलता था. अब ऐसा है कि इसी से मैंने इमेज ली और बोला कि ये एरर क्या है, वो वहीं पे मुझे सॉल्यूशन देना भी चालू कर देगा. सो Wow. दिस इज व्हाट नेक्स्ट थिंग्स आर गोइंग टू कम, एंड मोस्टली इट सीम्स लाइक दैट मोबाइल डेवलपमेंट का जो एरा था या जो भी इनोवेशंस आने थे मोबाइल के अंदर, वो मोरलेस हो चुके. हाँ. सो but पीपल yeah, विल गेट इनटू agents and all. हाँ. सो इन सब चीजों के लिए यू वुड नीड एन एजेंट, Okay. ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से यूज कर पाओ. हाँ, मतलब बहुत सारे यूज केसेस हो गए. आई हैव हम्म. सीन इन दी ई-कॉमर्स, सेल्स, मार्केटिंग, Yes. और मतलब एवरीवेयर. लाइक आप whatever industries you talk, they have their own agents. They Yes. talk, they take the decisions, they pull the data, and based on that they answers. So agents के भी टाइप होते हैं, लाइक कि एक ट्रेंड किया होता है और एक जस्ट आंसर देता है. So is there anything difference? No, so it's all about, see, agents are basically is a very vague term, right? Okay. Agent क्या कर रहा है, A to B जा रहा है, A to B जाके फिर वो सोच पा रहा है, फिर C to Okay. D भी जा रहा है. अच्छा. वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना यू नो स्मार्ट बनाते हो कि वो अपने एक्शंस ले पाता है बेसिस ऑन दी रिजल्ट्स दैट आर कमिंग व्हाइल द एजेंट इज गोइंग फ्रॉम A to B. B पे जो रिजल्ट है उस हिसाब से वो माइट बी एबल टू थिंक के एक्शन C लेना है या D की तरफ जाना है. सो that is again, they all are agents only. So I think like agentic AI and agent both are different, right? नहीं, they are They are same only. Yes, similar, yes. more and more. Agent. So basically, again, agent is a English word, right? कुछ है नहीं उसमें. वो AI Okay. के थ्रू वो कुछ डिसीजन ले पाता है. आपने कुछ वर्क फ्लो बना रखा है आपके कंपनी में, राइट? Okay. और वो वर्क फ्लो में आपने डिसीजन ट्री बना रखी कि अगर ऐसा होगा तो A में जाना है, ऐसा होगा तो B सेक्शन में जाना है. वो आपने पूरा फ्लो बना रखा है. अब कैसा हो रहा है कि वो फ्लो जो है ना, वो आपका AI फॉलो कर रहा है. तो अच्छा. AI को भी अपने सेट ऑफ रूल्स दे रखे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है, Right. राइट? जैसे
अगेन लीव्स वाली बात की, राइट? तो वहां पर आप HRMS में लीव अप्लाई करवा रहे हो आपके लिए, लेट्स से नवंबर फ्रॉम 21 to 24, राइट? बट आपने ये भी मैसेज पास कर रखा है कि उस दिन आपके डिपार्टमेंट में और कोई छुट्टी पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो क्या AI वो रीड कर पा रहा है कि वो सीधा जाके सिर्फ अटेंडेंसी मतलब आपके लिए लीव ही अप्लाई कर देगा? दैट इज द स्मार्टनेस, राइट? तो वो Okay. इवेंचुअली होगी सारी चीजें, बट दे ऑल आर एजेंटिक AI बोल दो, AI एजेंट्स बोल दो, एजेंट्स बोल दो, दे आर द सेम थिंग। same, you know. Okay. So, tell me the what things you have done for the NLP, LLM, and multi-models. सी NLP, NLM and multi models, NLP तो बहुत पहले था, राइट? द वन इन विच वी क्रिएटेड द मल्टीलिंगुअल मॉडल, Okay. राइट? हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म बनाया था मल्टीलिंगुअल का, दैट वाज ऑन NLP। Okay. ठीक है। LLM अब रिसेंटली आफ्टर चैट जीपीटी एवरीथिंग केम इन प्लेस, सो रिसेंटली वन ऑफ आवर प्रोडक्ट कॉल्ड एज बॉटस्ट्रीम Okay. deals into PDFs and the data of the customer and responds back to them based on the question that has been asked. Okay. So यहाँ पर what we have done is like कि complex PDFs जो होते हैं, ठीक है, Okay. it could be user manual or everything. So that is something that we can focus on and we can give the real time answer. So Okay. to give you an example, let's say I'll give you an example for railways and let's say airlines, ठीक है? Okay. तो रेलवेज में लोकोमोटिव पायलट जो होता है, राइट, उसकी जो ट्रेन है वो बार बार अलग अलग ट्रेन चला रहे होते हैं, या तो वंदे भारत अपनी ट्रेन जो है उसके जब नए वर्जन आते हैं तो उसका पूरा अंदर वर्किंग मैकेनिज्म चेंज हो गया होता है और ठीक उस है। वजह से एक नया यूजर मैनुअल आता है। Okay. So every time there is an incident that happened, the pilot has to go and have to check what has have gone wrong. But Okay. उनको वो पढ़ना पड़ता है, right? So what our system can do is like our system can keep that in the memory, and the pilot at the immediate stage can ask the bot directly and the bot will respond back. Okay. तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है, आपको तुरंत आंसर मिलेगा कि क्या करना है। Okay. So that is something that we have done. We are trying to run a pilot with the Indian Railways also. Similarly, the things can happen in airlines also, right? So Acha. when pilots are flying the plane and there is some issue that is coming up, they also open a book Okay. and see what is happening, what is not happening. Think of a case that वहां पर एक ऐसा एजेंट है, AI एजेंट, जिसको आपको सिर्फ पूछना है अच्छा. कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आई शुड डू, और वो वहीं पे आंसर दे देगा कि ये स्टेप्स करने, ये आपको चीजें करनी है। और मे बी अगेन मे बी दिस काइंड ऑफ स्मार्ट ग्लासेस आर देयर विद द पायलट्स एंड दे आर सेइंग देयर इज समथिंग एरर कमिंग, व्हाट आई नीड टू डू। तो वहां पर Okay. उनको रियल टाइम आंसर मिल सकते हैं। सो दिस Okay. काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी डन विद LLM। एंड नेक्स्ट आपने और तीसरा क्या बोला था? First is NLP and LLM and multi-models. मल्टी मॉडल्स में इतना ज्यादा अभी वी हैव नॉट गॉट स्कोप इनटू, बट Okay. या डेफिनेटली something which will be required in future, but we have not got ourselves into it at the moment. So, is there anything you have done for the machine learning and all? Yeah, absolutely. So machine learning is a part of AI. Okay. So what happens is like सबसे पहले आप प्लान करते हो कि मुझे ऐसा कुछ सिस्टम बनाना है, वो अच्छा. सिस्टम के लिए आपने कोड किया। अब Okay. उसमें कैसा होता है, उसका ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा होता है, राइट? सो आपने ट्रेनिंग किया, आपका जो भी डेटा सेट है उसको यू स्प्लिट बाय 70%, 30%, 70% यू पुट इनटू ट्रेनिंग, और फिर Okay. 30% में डाल के चेक करते हो कि एक्चुअल में वो रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। सही बात तो है. अगर वो चीज नहीं आ रही होती है तो विद टाइम यू गिव ए फीडबैक अच्छा. बैक टू द AI मॉडल स्टेटिंग कि ये करेक्ट था, ये गलत अच्छा. था, राइट? सो इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से अपन फ्रूट्स का कंपेयर करें, राइट? सो नाउ लेट्स से अपन ने AI मॉडल जनरेट किया फ्रूट्स के ऊपर, और हमने उसको एक एप्पल दे दिया और एक बनाना दे दिया, और हमने उसको एनोटेशन कर दिया कि भाई लंबा होगा वो बनाना होगा, Okay. और गोल होगा वो एप्पल होगा। Okay. तो वो इट विल स्टार्ट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एप्पल एंड बनाना, एंड सडनली उसके बीच में ऑरेंज आ गया। अच्छा. तो वो बोलेगा ये राउंड है, क्लोज टू एप्पल है, तो ये एप्पल होगा। लेकिन फिर हमें उसको गाइड करना है, नहीं भाई ये एप्पल नहीं, ऑरेंज है। बोले ठीक है चलो। नाउ व्हाट ही विल डू इज लाइक द AI विल स्टार्ट लर्निंग कि ठीक है, basis on the shape and basis on the color I can take decisions. Okay. Now we have a red apple, we have a yellow banana, and we have a orange with us, Apple. right? अब उसमें ऐसा है कि ग्रीन एप्पल आ गया, Okay. तो सिस्टम विल गेट कंफ्यूज कि अब क्या करना है, तो उसको फिर से गाइड करना पड़ेगा Train कि करना बॉस ये पड़ेगा. ग्रीन जो है ये ग्रीन एप्पल है। Okay. तो फिर वो एक नया मॉडल लर्न करेगा कि अच्छा मुझे शेप के साथ में कलर का भी एक फिल्टर लगाना है, तभी मैं राइट आंसर दे पाऊंगा, Right. क्योंकि ऑरेंज आपका जो है वो ऑरेंज कलर का होगा।
तो True. इस टाइप से आप मशीन लर्निंग का पार्ट होता है जिसमें आप फीडबैक लूप जो आप बार बार देते हो उनको कि ये करेक्ट है, ये गलत है, ये करेक्ट है, ये गलत है, जब उनके पास में वैसे थाउजेंड्स ऑफ यूज केसेस हो जाते हैं तब वो अपने ब्रेन में ये टिक कर लेते कि अगर ऐसा होगा तो आई विल आंसर दिस, एंड दिस इज Okay. हाउ द एआई मॉडल परफॉर्म्स। कि वो Okay. पहले 75% पे था, फिर आपने फीडबैक लूप लगाया, आपने कुछ लिमिटेड लोगों को एक्सेस दिया, उन्होंने उसको ट्राई किया, फिर Right. उस पर जब रेस्पॉन्स आने आपके चालू हुए, उसमें यूजर्स को हमेशा फीडबैक लूप दिया जाता है, उन्होंने बोला ये करेक्ट आंसर ये नहीं है। अगर आप Right. गूगल या कुछ भी देखोगे ना तो वहां पर आपको दिखेगा कि नीचे एक मैसेज होता है जहाँ ये लिखा रहता है कि वॉज दिस आंसर गुड इनफ फॉर यू, तो यू क्लिक ऑन यस और नो। Right. So when you click yes or no, तो accordingly it goes back to the tech team कि अच्छा इस टाइप के responses आ रहे हैं, what is wrong? So या तो सिस्टम खुद लर्न कर लेगा मशीन लर्निंग के थ्रू, या तो फिर डेवलपर्स विल डिफाइन द पैरामीटर्स अगेन कि अब Okay. इसमें एक्स्ट्रा चीज भी डाल। So Pallav, we talk about the NLP, machine learning, AI. Now, just tell me about something about the generative AI and what are the limitations. So generative AI as such is basically understanding what person is saying, right? Okay. And making sure कि historically जो भी conversation है वो सारा handle किया हुआ है। Okay. So that is what is generative AI, and because people have different way of writing, right? So Okay. कोई active sense में लिखते हैं, कोई passive sense में लिखते हैं, कोई टूटी फूटी इंग्लिश लिखते हैं, Mm-hmm. कोई वर्ड्स में गड़बड़ करते हैं, कोई स्पेलिंग गलत लिखते हैं। सो जनरेटिव एआई का मेन काम ये है कि इट एक्सक्लूड्स द एरर व्हिच इज हैपनिंग एंड Okay. इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द पर्सन विद द Okay. कॉन्फिडेंस को। सो आप कुछ भी बोलोगे तो व्हाट विल हैपन, द सिस्टम विल अंडरस्टैंड कि ये के हिसाब से ये जो वर्ड्स इन्होंने बोले उस हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस स्कोर है लेट्स से 95%, तो इट विल Okay. स्टार्ट गिविंग यू द आंसर बेस्ड ऑन द 95% के हिसाब से उनका जो आंसर आ रहा है। सो दैट इज बेसिकली द जनरेटिव एआई थिंग दैट So इज ये अराउंड। text to image और ये सब that is all about ना? नहीं, not text to image, text to image is not part of Voice, generative AI। audio or yes something. yes Yeah. तो आपका जो text to speech and speech to text जो Yeah, होता है, correct, yes yeah. yes that is generative AI। अब अगेन उसमें आपका जैसे डायलेक्ट हो गया, Okay. सो फिर आप गुजराती बोलोगे, मैं गुजराती बोलूंगा, दोनों का डायलेक्ट अलग है, सिस्टम कुछ और ही समझेगा। अगर आज भी आप जैसे आपके फोन में सिरी से बात करते हो या एलेक्सा से बात करो, गूगल से बात करो, एंड यू विल पास अ मैसेज, और मेटा से Okay. बात करो, वो डायलेक्ट कुछ और ही समझेगा। आप कुछ बोल रहे होगे और उसके हिसाब से जो समझ में आएगा वो उसका आंसर दे देगा। दे देगा। स्पेसिफिकली हैपेंस व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्ले हिंदी सॉन्ग्स या गुजराती Okay. सॉन्ग बजाना है और आप गुजराती वर्ड बोलोगे कि ये बजाओ, तो Okay. उसको अगर वो चीज समझ में नहीं आई तो इट विल जस्ट पास। नाउ जनरेटिव एआई की दूसरी चीज मैं आपको बताऊं तो मल्टी लैंग्वेजेस, राइट, एक साथ इन ए सिंगल स्टेटमेंट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिस्टम टू अंडरस्टैंड, Right. क्योंकि गुजराती में उस वर्ड का मीनिंग कुछ अलग है विच यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, बट वही मीनिंग इंग्लिश में भी कुछ रिसेंबल कर रहा है। Okay. तो वहां पर सिस्टम का लिमिटेशन आना चालू हो जाता है, बिकॉज उसको नहीं पता कि सडनली यू हैव जस्ट पास ए गुजराती वर्ड इन बिटवीन, जस्ट लाइक Right. इंग्लिश, राइट। Right. सो आप इंग्लिश में बात करो, राइट, Okay. यू आस्क एवरीथिंग इन इंग्लिश एंड सडनली उसमें कुछ हिंदी वर्ड ऐसा यूज करो जिसका इंग्लिश में भी कोई सेंस बनता है, राइट, तो Okay. सिस्टम विल फेल। सो Okay. अगेन ये लर्निंग की बात है, इट विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, और एक टाइम ऐसा होगा कि जनरेटिव एआई विल बी डूइंग प्रोफाइलिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। Okay. ठीक है, तो मैं किसी मैं दिल्ली को दिल्ली बोलता हूँ और आप दिल्ली को दिल्ली बोलते हो, Right. सो सिस्टम विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपके डायलेक्ट में दिल्ली को आप दिल्ली बोलते हो बोलते हो। और मैं Correct. दिल्ली को दिल्ली बोलता हूँ, राइट। So that is also trained. सो यस, सो व्हाट विल हैपन कि एआई उस लेवल तक जा चुका होगा कि वो पर्सनलाइज हो जाएगा, और Okay. पर्सनलाइज होने के बाद में उसको पता है कि ये चीजें हैं जो आती है बाय डिफॉल्ट। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। Okay. So बट अभी लिमिटेशन है उस चीज की कि आप right. मल्टी लैंग्वेज हो जाए, आप इंग्लिश बोलो फिर हिंदी बोलो फिर बीच में मराठी डाल दो, गुजराती बोलो, तो सब हो सकता है। वो गिव अप कर देगा कि सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। Okay. And the question is, आपने बहुत सारे पेटेंट फाइल किए हैं, right, for you or client, right? So I want to understand what innovations you did actually. So basically what happened is like back in 2020 जब COVID and everything was at initial level पे आ रहा था,
So we got some smart mirrors from China, Okay. and client wanted to have similar mirrors in like that, but they wanted कि production line India में हो उसकी. Okay. So for that, what we did is like the business model was like कि smart mirror होगा आपके घर पे होगा, and then you will do exercise. वो smart mirror आपको या तो guide कर रहा होगा या तो वो आपका pose estimation कर रहा होगा, and accordingly वो आपका accuracy वो सब बताएगा. दे देगा. But हाँ. with time we realized that not everyone would be able to invest $1,000 in order to have a single smart mirror at home. Right. So business model में जो clientele थे वो बहुत कम हो गए थे. So the thing that came in thought was like, why can't we convert the entire machine learning model into a light model and put that inside a phone? Okay. So that was the major thing that we did. So उस वजह से कैसा हुआ कि we created the first application that can use AI in order to do pose estimation of people, right? Okay. और वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आपको कोई नया डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है. Okay. So this is a big thing that we did at that time, क्योंकि उस टाइम पोज एस्टिमेशन ही अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट था. प्लस Right. उसके लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट, कि आपको 8 GB रैम चाहिए, आपको उसमें GPU चाहिए, जो भी चीजें हैं वो Okay. सब एक्सक्लूड करके हमने उसको लाइट मॉडल के थ्रू वी इंसर्टेड दैट इनटू ए फोन. वाज अ वेरी बिग थिंग दैट वी डिड एट दैट टाइम. Okay. And then we raised funding also, and took that to the next level, and now we are into physiotherapy. So उसी platform को use करके we are also doing physiotherapy and fitness, both of them. Okay. So is there anything you have done or planning for the climate change or something? Yeah. So sorry, I would like to again support the patent question. Okay. Right. So in that particular product, we filed like close to 21 patents. Okay. In US. And language वाले में हमने patent file किए. And then Okay. couple of patents that I have filed. So one of that is in defense. Okay. And the another one is into AR. Okay. And currently we are exploring the avenues of collaboration with more companies based on the patents Okay. that we have filed, and the solutions that we have at the Okay. moment. So Pallav, can you tell me what's the role of AI in the climate change? So basically, AI is going to definitely help basis on the data that is around, Okay. right? So AI can realize that what is happening, what is the climatic condition and the trend that is happening, and accordingly can guide what needs to be done. Okay. Okay, so it is doing really a good job. So one of the recent case study that was been done by one of my mentor was basically looking into the possibility of any bridge that might collapse because of the shift in the land from Okay. time to time. So what they did is like using AI, they tracked the entire bridges which are there in Europe, and then basis on that they try to understand what is the degree of change that is happening in the land. Okay. और वो लैंड में चेंज होने की वजह से what could be the impact that might happen on the bridge that has been constructed. Okay. And basis on that they came up with a decision making where they were able to find out the scenario where the bridge which actually collapsed वो Okay. उन्होंने सिमुलेशन के थ्रू ही पता कर लिया था. अच्छा. So now that has been taken by the government, and now government is thinking के जितनी भी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर सरफेस लेवल पे चीजें ओवर द पीरियड चेंज होती है, उससे जो भी चीज ब्रेक हो सकती है उस पे दे हैव स्टार्टेड फोकसिंग. सो दिस इज वन ऑफ द केस. फिर आपका क्लाइमेट चेंज में आपका आई वुड से जो सीजन्स अपने होते हैं वो सीजन्स किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, उससे क्या इम्पैक्ट होगा. उससे लेट्स से कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो बारिश से जो रेनफॉल होगा वो कहाँ मूवमेंट होगा कहाँ नहीं होगा. सो दिस ऑल थिंग्स कैन बी डन यूजिंग सिमुलेशंस. Okay. राइट. सो देयर इज वन कंसेप्ट कॉल्ड अ डिजिटल ट्विन. Okay. So digital twin में you can do any imagination that you would want to do for the climate, for the on Earth, for example, and Okay. then you do not have to invest. Okay. Right. So to give you an example, let's say roads की बात करते हैं, right? So carbon emission और ये सब यहाँ पर होता है, right? Now there is a flyover which is happening on some road of ours. अब वो flyover कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ खत्म होना चाहिए, किस तरफ टर्न होना चाहिए,
वो सब सोच के एंड बेसिस ऑन इट द वॉल्यूम ऑफ द व्हीकल्स दैट आर कमिंग उससे क्या इम्पैक्ट होगा, कितना परसेंटेज चेंजेस आने वाले, दिस ऑल थिंग्स कैन बी डन यूजिंग डिजिटल ट्विन अच्छा, रेदर देन एक्चुअल में बिल्डिंग द एंटायर ब्रिज एंड देन थिंकिंग अच्छा ये गलत हो गया। ओके, सो उससे कैसा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इन कंट्री लेवल पे गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत Okay. कम हो जाता है, दे डोंट हैव टू इन्वेस्ट करोर्स राइट। ओके, वो कुछ अच्छे ठीक ठाक अमाउंट पे दे आर एबल टू सी कि अच्छा अगर हम ये करते तो क्या होगा। सो व्हाट हैपेंस इज लाइक डिजिटल ट्विन कम्स विद ए कंसेप्ट कॉल्ड एज व्हाट इफ सिनेरियो ओके। कि अगर मैं ये करूं तो क्या होगा। और व्हाट इफ सिनेरियो आप रियल लाइफ में कर ही नहीं सकते क्योंकि वो ब्रिज तो बन चुका है। तो ये बट क्या होता है डिजिटल ट्विन्स? डिजिटल ट्विन में कैसा होता है कि वी टेक द रियल डेटा राइट। अब वो रियल डेटा अलग अलग तरीके से होता है, जैसे अगर फैक्ट्री की बात करेंगे तो हम आईओटीज लगा के सेंसर्स लगा के डेटा लेके आएंगे राइट। हम लोग अगर रोड की बात करते हैं तो रोड पे जितने सिग्नल्स पे कैमरा है उससे वी कैन गेट द डेटा कि कितने व्हीकल्स किस टाइम पे किस हिसाब से मूव कर रहे हैं। ओके, और उस हिसाब से हम लोग उस एरिया का एक डिजिटल ट्विन बना लेते हैं। अच्छा, So real data coming from the real world, that is the camera based data set that we have. Let's say अगर if we talk about Ahmedabad and SG highway की बात करते हैं तो from Gandhinagar to Ahmedabad we know basis on the camera and the calculation that is having कि daily let's say 25,000 vehicles travel करते हैं ओके, morning 10 से लेके evening 8 तक। if this is the Okay. data set that we have, हम लोगों ने एक डिजिटल ट्विन बनाया। डिजिटल ट्विन में हमने ये डेटा सेट वहां पर पास कर दिया तो Okay. वहां पर जो हमारा डिजिटल रोड होगा वहां पे भी 25,000 व्हीकल्स चलेंगे। नाउ Right. basis on the inflation in terms of vehicles that are going to come कि next 25 years में ये 50,000 vehicles रोल करने लग जाएंगे यहाँ पर। Right. तो हम लोग आज ही वहां पर 50,000 करके देख सकते हैं कि कौन कौन से जंक्शन पे ब्लॉकेज आ रहा है। तो अच्छा, हमें पता पड़ जाएगा कि लेट्स से पकवान पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आना चालू हो गया। तो ओके, हम लोग फिर ये सोच सके कि पकवान पे ट्रैफिक होगा कंसिडरिंग 35,000 एंड अबव में ट्रैफिक दिखेगा और बिल्कुल ब्लॉकेड हो जाएगा। तो ओके, हम लोग वहां से डिजिटली वी कैन पुट एक्स्ट्रा रोड दैट वुड बी अ फ्लाईओवर। लेट्स से वो Okay. पकवान से फ्लाईओवर हमने सिंधु भवन में कहीं पे एंटर करवाया और उधर क्या होगा कि ये जो व्हीकल्स है वो दे विल स्टार्ट रीडायरेक्टिंग फ्रॉम देयर। ओके, तो ये जो चीज इट्स लाइक ए लेगो राइट कि आप रख रहे हो हटा रहे हो रख रहे हो हटा रहे हो एंड यू आर एबल टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड। वाह। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड दिस कैन बी डन बाय डिजिटल ट्विन इसके करंटली। यूज केसेस कुछ? यस यस सो हम लोग हमारी जो सऊदी अरेबिया में जो कंपनी है सो आई हैव माय पार्टनर डॉक्टर ताहा सो ही इज ए पीएचडी इन एआई एंड उनका कोर काम डिजिटल ट्विन का ही है। सो करंटली वी आर हेल्पिंग यूएस क्लाइंट्स जहाँ पर लेट्स से वी हैव ए फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्शन की फैक्ट्री है वहाँ पर एंड लेट्स से दे आर प्रोड्यूसिंग 10,000 मेडिसिन अ डे। Now Okay. they have a plan that they have to take it up to 15,000 medicines a day. Now Achha. how they are going to do it? So what they will do, they will just add more conveyor belts, like जिसके थ्रू उनका प्रोडक्शन लाइन बढ़ाने के लिए उनको क्या करना होगा। तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली बाइंग प्रोडक्शन लाइन हम लोग उसी पूरे फैक्ट्री का डिजिटल ट्विन बनाते हैं और हम लोग डिजिटली नेक्स्ट जो भी आइटम्स खरीदने हैं या तो उनको कन्वेयर अच्छा। बेल्ट चाहिए वो हम वहाँ लगा के उनको प्रोडक्शन दिखाते हैं। इससे कैसा होता है कि नॉट जस्ट द प्रोडक्शन, आपको ये भी देखना होगा कि मैन पावर कितना बढ़ाना है, आपको ये भी देखना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या चेंजेस आएंगे। तो ये सारी चीज हम डिजिटली पहले कर लेते हैं ताकि जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स है उनको पहले से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, आई विल गिव यू अनदर केस। सो थिंक ऑफ टेस्ला राइट। सो Okay. टेस्ला की फैक्ट्री है किसी एक्स जगह में, नाउ दे वुड वांट टू हैव ए फैक्ट्री इन वेगस आल्सो, एग्जांपल है। सो क्या वो वहां जाके वो फैक्ट्री डाल देंगे? नहीं, दे विल डू ए एनालिसिस के वहां पर जाने पे क्या इम्पैक्ट होगा ओके, राइट क्योंकि वहां पर उनके क्लाइंटल्स कितने हैं, whether they should have another factory in Vegas or they should have another factory let's say in China or maybe somewhere in Middle East, वहां पर उनको रखना चाहिए। तो वहां पर literally they can have a digital twin and they can see how things are happening. ओके, So in order to connect to the real world data to a virtual world and where from virtual world you are able to take decisions. So अच्छा, that is digital twin, just like it is very common in aviation जहाँ पर Okay. आपको पायलट्स दिखते होंगे जो एक डिजिटल ट्विन प्लेन में होते हैं और जिसमें उनका सिमुलेशन में वो सारे प्लेन्स और वो सब उड़ाते हैं। अच्छा। इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट बट फॉर एवरीथिंग। So ये simulators kind of हो गए। यस इट्स अ काइंड ऑफ सिमुलेटर बट वो माइक्रो मैनेज सिमुलेटर्स है। मतलब हम लोग लिटरली एक एक बोर्ड जो लगा होता है ना मशीन में उसको भी वहां पर लगा के देते हैं। अच्छा, तो आप मानो कि लेट्स से ये दो सोफा है, देयर इज अनदर सोफा दैट यू आर कीपिंग व्हिच इज एग्जैक्टली द सेम एंड देन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपका जो फ्लोर है उस पर लोड कितना आ रहा है।
So that kind of thing is something that can be done by digital twin. So it is a fantastic thing to do, but not everyone is able to understand कि ये क्या है. Actually, like even I heard about, and I think that's a booming. Like अगर AI तो चल ही रहा है, but I think these are the technologies where very few companies are understanding and doing it, right? Yes, absolutely. So अगर मैं आपको EV की बात करूँ, ठीक है, अब EV व्हीकल्स हैं, अब EV व्हीकल्स में जो बैटरी है उसको आपको टेस्ट करना है, राइट? सो टेस्ट करने में आप क्या करोगे, यू विल लिटरली टेक दैट बैटरी टू लेट्स से सियाचिन में जाके आपने रखा, फिर आप उसको थार में ले गए, थार में आपने रखा थोड़े टाइम, एंड यू आर एबल टू सी कि हाउ द बैटरी इज रिएक्टिंग, राइट? अच्छा. बट विद डिजिटल ट्विन यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, बिकॉज आपने वो बैटरी का ही डिजिटल ट्विन बना दिया है. अच्छा. नाउ ऑल यू आर पासिंग इज द टेम्परेचर. Okay. आप बोल रहे हो सियाचिन इज -50, आपने बोला भाई -200 में क्या होगा, मेरे को चेक करना है. यू जस्ट पास इट, वो उस हिसाब से रिएक्ट करना चालू कर लेगा. Okay. तो प्लेन्स और ये जो भी बनते हैं तो उनके लिए भी एरोडायनामिक्स और ये जितनी भी चीजें देखनी होती है, तो बिकॉज इट इज अ डिजिटल ट्विन ऑफ समथिंग, आप वहां पर डिजिटली उसको इनसाइट्स दे सकते हो, पैरामीटर पास कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली इट विल स्टार्ट बिहेविंग. तो आपको पता पड़ जाएगा कि उस बैटरी का एक्सट्रीम क्या है. राइट. राइट, आप ये बोल सकते हो कि सियाचिन में भी चल जाएगी आपकी गाड़ी, राइट, लेकिन सियाचिन से भी ज्यादा भी चल सकती है. तो आपको एज ए कंपनी पता है कि हम लोग बोल रहे हैं -50 पे चलती है, बट हमें पता है -100 पे भी चल रही है. ओके. सो वो सारी चीजें आपकी डिजिटल ट्विन से हो सकती है, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू. कोई स्मॉल यूज केसेस ये तो बहुत है बड़े, हाँ. जैसे रियल एस्टेट में, ई कॉमर्स में, कहीं रियल एस्टेट में भी है डिजिटल ट्विन, जैसे समथिंग ऑन विच आई एम, मेरे पेटेंट अभी मैंने जो दूसरा फाइल किया है, अच्छा. सो दैट इज जो AVR के अंदर है. सो आई कैन बेसिकली डिफाइन ए वर्चुअल बिल्डिंग समवेयर, एंड आई Okay. कैन ट्रैवल इन दैट बिल्डिंग द वे आई वांट टू, विदाउट एनी हार्डवेयर, विदाउट एनीथिंग. सो आप सोचिए कि आपकी ऑफिस के बाहर में एक ओपन लैंड है, उस ओपन लैंड पे मैंने वर्चुअली एक बिल्डिंग भी बना दी, और उस बिल्डिंग के अंदर मैं ट्रैवल भी कर पा रहा हूँ. अच्छा. राइट, सो दैट्स दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन. अगेन इट इज अ काइंड ऑफ डिजिटल ट्विन. सो कोई बोल रहा है कि उनके पास बिल्डिंग एंड दे आर ट्राइंग टू हैव द सिमिलर कॉपी समवेयर एल्स, तो वो बिल्डिंग उठा के कहीं पे लगा के दे कैन लिटरली सी इन देयर VR वर्ल्ड की, AR वर्ल्ड की, व्हाट इज हैपनिंग, ऐसा दिखेगा, इससे ये इम्पैक्ट आएगा, मेरे को क्या चेंजेस करने. तो आप वर्चुअली ही पहले कर लो, डिजिटल में चेंजेस कर लो, रादर देन डूइंग इट इन एक्चुअल. सो आपको फिजिकली खर्चा करने की जरूरत नहीं है, और खर्चा करने के बाद में आपको वो पेन एरियाज जो है, जो आने वाले, वो आपको पहले ही समझ में आ जाएंगे कि दिस आर द पेन एरियाज. वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अदरवाइज वैसा होता है ना कि फ्लाईओवर तो बन गया, लेकिन फ्लाईओवर गलत जगह उतर गया, तो आपको यूज ही नहीं कर रहा है. देयर आर वेरी बहुत केसेस है ऐसे, बहुत सारी जगह हमारे यहाँ पे हाँ. एरिया में यहाँ पर है, और मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया, बाहर भी होता है, क्योंकि वो राइट तरीके से सोचा नहीं. सोचे नहीं. सो अगेन सिटी लेवल पे आपको मैं बताऊं तो जो एजी हाईवे पे जो अंडरपास है, राइट, गुरुद्वारा के यहाँ, सो इफ इट स्टार्ट फ्रॉम पकवान, आप एक बार अंदर गए, आप सीधा ये पलाडियम मॉल पे निकल पाओगे, Right. बाकी कहीं निकलने का ऑप्शन ही नहीं है. तो क्या जो वॉल्यूम ऑफ पीपल है, दोज हु आर ट्रैवलिंग, वो इक्वल है, क्योंकि ट्रैफिक तो आज भी गुरुद्वारे पे होता है ऊपर. Right. सो वाज दैट थॉट थ्रू इनफ कि क्या वहां से फ्लाईओवर ऊपर निकालना चाहिए था कि नीचे निकालना चाहिए था, ये चीज लोगों के पास नहीं है. नहीं. अगर ये होगी देन दे कैन टेक ए राइट डिसीजन. तो Okay. आपके एक्सपेंसेस पे आप राइट डिसीजन ले पा रहे हो, दिस इज व्हाट इज AI इज गोइंग टू हेल्प. Okay. कि आप समझ पा रहे हो पहले से वेल इन एडवांस कि ये करने से हमें क्या इम्पैक्ट होगा. Okay. So that is the beauty of AI, because you don't have to literally build that particular thing. Right. So what I understand is the OEM or product manufacturing companies, like I think they can think about the AI plus digital twins kind of simulators things, right? हाँ, absolutely. मतलब OEMs हो गए, और OEM में कैसा है, OEM तो सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, हाँ. other people are basically using it, Okay. right? So वो डिपेंड करता है कि एंड यूजर के लिए वो कैसे प्लान कर रहे हैं. तो या तो OEM खुद करेगा, या तो फिर बीच में जैसे मिडिल कंपनीज हमारे जैसे हो गए, जो OEM यूज करके और क्लाइंट के लिए पूरा प्रोडक्ट बना के देते हैं, हम लोग उसमें AI इन्वॉल्व करेंगे. अच्छा, जैसे कार या फर्नीचर्स वाले के लिए मतलब Yes, yes, simulators बिल्कुल. बनाते हैं वो लोग. बिल्कुल 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 वैसे सिमुलेटर्स बना के, एंड देन वी कैन टेक एक्शन की क्या करना चाहिए, एंड व्हाट वुड बी द राइट थिंग दैट नीड्स टू बी डन, एंड उसी हिसाब से देन यू कैन टेक द फर्दर डिसीजन. So I think that's a right
I think right track to start any new technology understanding or Yes, कोई अगर फाउंडर को किसी कोई नया अगर टेक्नोलॉजी सिलेक्शन करना है correct. आई बिलीव ये डिजिटल ट्विन्स और एआई प्ले अ बिग रोल until Definitely. unless उसको समझ तो आना चाहिए पहले at least. बिल्कुल बिल्कुल. Right So now. मेरे हिसाब से लाइक मे बी स्पेस साइंस में ये यूज हो ही रहा होगा बाय डिफॉल्ट, Okay. बिकॉज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सो हाई. दे नीड टू चेक कि उनकी सैटेलाइट्स या रॉकेट्स जो है Mhm. वो प्रेशर में और कैसे हैंडल करता है. दे मस्ट बी वही डूइंग होगा. इट. Right. बट अच्छी बात ये है कि ये चीज आप ग्राउंड लेवल पे भी कर सकते हैं. अच्छा. सो यू डोंट हैव टू, बिकॉज अब कैसा हो गया ना कि the cost of storage and cost of processing has gone low so much कि any person can have it. Okay. वैसा है, right? The only point is like कि लोगों को समझने की जरूरत है कि अब ये सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी की चीज नहीं है. नहीं. ये चीज आप आपके यहाँ पे भी प्लान कर सकते हो, Right. राइट? कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन प्लान. सो लेट्स से एयरपोर्ट की बात करते हैं अपन, राइट? सो Mhm. एयरपोर्ट में कितने एरोड्रम्स होने चाहिए, पाथ होने चाहिए, Right. उसके अगेंस्ट में कितनी बसेस होनी चाहिए, उसके हिसाब से कितने ऑपरेटिंग स्टाफ होना चाहिए. ये सब आप एक सिमुलेशन के थ्रू हैंडल कर सकते हो. Oh. तो आपको लिटरली बना के फिर ये नहीं देखना है कि वो समथिंग वेंट रॉन्ग. आप लिटरली उसको रख के देख पाओगे. अच्छा. Yeah, actually, मतलब I think फिर आप उसमें that's पास right कर सकते हो way. ना. Pass तो कर जैसे सकते हो. अहमदाबाद एयरपोर्ट की बात करें आप, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट में लेट्स से देयर आर 500 फ्लाइट्स कमिंग डेली, एग्जांपल है. तो 500 आ रही है, नाउ यू आर प्लानिंग फॉर 1500 फ्लाइट्स टू कम ड्यूरिंग मे बी जब अपने पास ओलंपिक्स फॉर्चुनेटली अपने पास होगा, हाँ. तो तब 1500 आएगी. तो 1500 के लिए कैसे एक्सपांशन करना है, और एक्सपांशन करने के हिसाब से किस हिसाब से एक्सपांशन करना है. तो वो आज की तारीख में सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का काम नहीं रह गया है. Okay. आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी, बड़ी बड़ी कंपनीज ये फॉलो तो करती होंगी, बट अगेन द पॉइंट इज लाइक कि वो ही फॉलो कर पा रहे हैं. सही बात है. दैट्स द थिंग. So there is a term Hmm. AI on edge and AI on cloud. Correct. So what is all about actually? So what happens is like AI on edge is basically what we do is like we put AI inside the device itself so that it doesn't send signal to the server and get back the response. Okay. और AI on cloud ऐसा है कि वो आपका जब आप रिक्वेस्ट फायर करते हो तो इट गोज टू द क्लाउड, गेट्स द आंसर एंड कम बैक. Okay. दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस और प्रोज एंड कॉन्स है. Okay. एज डिवाइस में अगर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो एडास सिस्टम जो होता है कार के अंदर, वो एक एज डिवाइस होता है. Okay. ठीक है. एडास में आज की तारीख में लोग रेडार और ये यूज कर रहे हैं, बट देन टू यू कैन थिंक ऑफ कि आप कैमरा बेस्ड कंट्रोल कर रहे हो चीजों को, वो एज डिवाइस होता है. इफ यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल एट द स्पीड ऑफ 100, ठीक है, एंड सामने कुछ ऑब्स्टिकल आ गया एंड द व्हीकल इज सपोज टू स्टॉप, नॉट बेसिस ऑन रेडार बट बेसिस ऑन द इमेज जो आ रही है कैमरा में, उसमें आपने वहां पर उस चीज को इंस्टॉल कर रखा है. तो वहां पर वो रियल टाइम पे अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं देगा ना, तो यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट. अच्छा. तो ये चीजों के लिए AI ऑन एज होता है. Okay. सिमिलरली द फिटनेस एप्लीकेशन दैट वी क्रिएटेड, हम लोग जब उसमें एक्सरसाइज कर रहे थे, सो एक्सरसाइज करने पे वी रियलाइज कि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिस्टम प्रोसेस कर रहा है, वो प्रोसेसिंग चीजें पीछे जा रही है बैकएंड पे और रेस्पॉन्स आ रहा है. सो वी वर सेंडिंग लाइक क्लोज टू 1600 सिग्नल्स इन ए मिनट Oh. टू गेट द रेस्पॉन्स. अगर उसमें कहीं पे भी लैग हुआ, अगर उसमें माइक्रोसेकंड का लैग आ गया, 10 माइक्रोसेकंड का लैग आ गया, तो सिस्टम विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग लेट बाय 10 माइक्रोसेकंड. Oh. आप पुशअप्स कर रहे हो, आप पुशअप नंबर 5 पे पहुंच गए हो, उसने सिस्टम में रेस्पॉन्स आया 3 नंबर का, तो वो 3 बोलेगा और आपको हमेशा वो लैग दिखेगा. सो वी डिड देन द एज कंप्यूटिंग कि बेसिक्स जो है वो सारे यहाँ होने चाहिए, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स है वो आगे एज पे रखो. सो दिस इज एज कंप्यूटिंग. बट व्हेन यू टॉक अबाउट चैट जीपीटी एंड ऑल, दे आर लाइक लार्ज मॉडल्स, राइट? उनको किसी एज पे रखना अपने आप में डिफिकल्ट चीज है. एंड क्योंकि वो सर्वर पे है, तो सर्वर पे तो आप उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना भी बड़ा करो, सर्वर बड़े कर दो, उसके रैम्स और जो भी है सब कुछ बड़ा कर सकते हो ताकि उसकी स्पीड बढ़े, प्लस उससे जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो रेस्पॉन्स पे आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत नहीं है. Okay. राइट? सो इफ यू आस्क दैट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, राइट, तो आपको इमीडिएट एक्शन नहीं है. वो पूछ के आपको अगर 10 सेकंड में भी रिप्लाई देगा, देन यू आर फाइन विद इट. सो Okay. दैट्स द डिफरेंस, राइट? Okay. समथिंग दैट नीड इमीडिएट एक्शन नीड्स टू बी डन ऑन एज, जो डिवाइस के ऊपर होता है. और the limitation that comes is like in order to run that light model on edge, आपको वो जो डिवाइस है वो खुद कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए. Okay. So अगर कोई AI मॉडल है जो 4
जीबी के रैम के नीचे नहीं रन करता है, तो इफ यू हैव ए ओल्ड फोन वो नहीं रन करेगा. नहीं तो दिस इज करेगा. द लिमिटेशन. बट चैट जीपीटी आपके ओल्ड फोन पे भी रन कर लेगा क्योंकि वो सर्वर पे भेज रहा है. तो Right. दिस आर द गैप्स बिटवीन बोथ ऑफ देम, और सबके अपने अपने यूज केसेस है. Apart from AI, what's the trending technology just like AR VR? आई थिंक येस एब्सोल्युटली एआर वीआर आर समथिंग व्हिच आर गोइंग रियली गुड. क्योंकि एक टाइम था जब मेटा क्वेस्ट और वो देखोगे वो कितने बड़े डिवाइस थे. आई नेवर वेंट एंड परचेज, बट नाउ looking at the case ki with this small glass you have a camera, you have speaker, and you have a couple of more features inside it. There are another companies those who have given a screen here. Okay. तो अभी वो कंपनीज आ चुकी है जो स्क्रीन दे रही है. सो जब वो स्क्रीन यहाँ पर आ जाएगी देन आई थिंक कि इफ आई एम एबल टू रीड माई व्हाट्सएप मैसेज via speaker and if I am able to see using the small screen over here, Okay. so the Easy world to is moving in that direction. तो आप न्यूरालिंक देखेंगे अगर इलॉन मस्क का, तो वो तो ब्रेन में इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं, राइट. ब्रेन में चिप डाल देंगे, तो ब्रेन में चिप डालने के बाद में उनका भी ह्यूमन ट्रायल्स आर गोइंग ऑन एट द मोमेंट एंड दे आर रियली रियली गुड. बट आई थिंक दे आर अगेन अहेड ऑफ देयर टाइम. आज की तारीख में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है एंड दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल थिंग्स देयर बॉडी विद देयर ब्रेन, बहुत कम चांस है कि कोई चिप लगाने के लिए ओके करेगा. बट स्लोली जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से AR VR आर गोइंग टू बी इन द मार्केट. मींस डेफिनेटली दे आर द नेक्स्ट थिंग कमिंग. वर्चुअल ट्राई ऑन और ये सब भी यस यस डिमांडिंग. बिल्कुल बिल्कुल आप वर्चुअल ट्राई ऑन कर सकते हो. और इफ यू गो टू ए शोरूम एंड देन यू सी सम शूज एंड यू जस्ट आस्क द AI कि व्हाट इज दिस शू, एंड देन AI विल टेल कि ये इस ब्रांड का है, ऐसा है. देन यू कैन से कि इसकी प्राइसिंग ये तुम मेरे को ऑनलाइन सर्च करके बताओ, तो AI अभी ऑनलाइन सर्च करके बताता है कि यहाँ पर ये अवेलेबल है. तो ये सब चीजें है, राइट. बट नाउ आई बिलीव AR एंड VR अगेन थोड़ा नीश हो जाएगा बिकॉज यू हैव टू कंप्लीटली वेयर इट एंड यू आर आउट ऑफ द एक्चुअल वर्ल्ड. बट AI हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज वो आपके करंट वर्ल्ड के अंदर कुछ एनहांसमेंट लेके आता है, लेके आएगा, राइट. सो थिंक ऑफ ए केस कि मैं अभी आपको देख रहा ना, आई एम सीइंग दिस माइक एंड आई जस्ट हैव अ पॉप अप ऑन माय ग्लास स्टेटिंग कि ये माइक Amazon पे अवेलेबल है फॉर एक्स अमाउंट, एंड आई जस्ट हैव टू से आई जस्ट बाय इट, वो मेरे कार्ट में ऐड कर देगा. दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू कम. Okay. So is there any bottleneck or any unsolved things which is pending or like which is left in AI development? Yes, a lot of means अभी भी वो लर्निंग ही चल रही है. एज आई टोल्ड कि सारी इंडस्ट्री का टच बेस नहीं हुआ है. Okay. डेटा है लेकिन वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसको स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करना, डिफरेंट डेटाबेसेस को एक दूसरे से बात करने की कैपेबिलिटी लेके आना ये के अंदर, दिस आर गोइंग टू टेक टाइम. बट अगेन द केस इज लाइक this will be done mostly by the big giants only, jinke those who have deep pockets. So they are going to come up with a solution because they already have something which is already done and now they have to take it to the next level. So again AI हमेशा अपने आप में कुछ ना कुछ नया लाता ही रहेगा. Okay. Yeah. So if you have to solve one like $1 million AI opportunity, so what will be? Okay, that's a good question. I think I have a personal bias towards education in our country. So if given an opportunity, I would be focusing more on that how we can upskill our youth in order to make sure that they are ready for tomorrow. Okay. And also they are also able to explore what they have within themselves. तो कुछ लोगों को खुद को पता ही नहीं होता कि दे आर रियली गुड एट समथिंग. कुछ लोगों की क्रिएटिविटी अच्छी है, दे हैव नो आइडिया. वो ऐसे बस कैनवास पे अपनी पेंटिंग करते हैं बट उनकी पेंटिंग देखी नहीं किसी ने तो कोई उनको बताएगा नहीं, राइट. और कुछ लोग होते हैं जो पेंटर बनना चाहते हैं बट दे आर वेरी बैड एट इट. तो वो रियल टाइम मतलब उनको मिरर भी नहीं मिलता है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, राइट. सो एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग जहाँ मोस्ट ऑफ द किड्स गेट लॉस्ट कि उनको करना कुछ है, उनकी कैपेबिलिटी कुछ और है, और तो उनको पता ही नहीं है कि वेदर आई एम गुड इनफ फॉर दिस और हाउ आई कैन बी गुड इनफ फॉर दिस. इसी क्वेश्चन में लोगों की एजुकेशन आज की तारीख में कंप्लीट हो जाती है इंडिया में. Okay. So if I like talk about AI again,
तो एक लेवल होता है जहाँ पे एवरीवन अंडरस्टैंड बाय चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लाउड, राइट? नाउ देयर इज अनदर लेवल फॉर द डेवलपर्स, लाइक कि अभी चालू हो गया कि लवेबल एआई आ गया, फिर कर्सर आ गया, बोट एआई आ गया, Base44 है. करेक्ट. सो नाउ थिंग्स आर अपग्रेडिंग. मतलब अगर बेसिक पब्लिक के लिए तो ये हो गया, उसके लिए एक लेवल आप है तो उनके लिए वो है. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड लाइक the differences between the lovable, cursor, Base44. So इनके like they have a different platforms and all, right? So what's the difference in that? So again, so जैसे चैट जीपीटी और ये जो है, those are basically for end users जिनको नहीं पता है, right. but they know how to ask and they get their answers. Right. तो end user के लिए तो चैट जीपीटी और यही चलते रहेंगे, राइट? मेटा एआई हो गया, उनसे पूछो, सब कुछ ठीक है. दूसरे वाले जो है वो आप समझिए कि इस टाइप के एआई के टूल्स हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं चैट जीपीटी और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए. Okay. राइट. सो आपका कर्सर हो गया, लवेबल हो गया, दिस आर बेसिकली मेंट फॉर कोड डेवलपर्स. Okay. राइट. वो कोड डेवलपर्स जो कंसेप्ट सोच रहे हैं, जो बनाने की ट्राई कर रहे हैं, उसमें भी जो हैवी लिफ्टिंग करनी है वो एआई कर लेते हैं, एंड ताकि डेवलपर्स आर एबल टू स्पेंड मोर टाइम इन ऑर्डर टू थिंक, विजुअलाइज एंड देन डिलीवर द थिंग्स. सो ये डेवलपर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कर्सर एआई यूज किया आपने, बोल्ट यूज कर लिया आपने, लवेबल यूज कर दिया. कंसिडरिंग देमसेल्फ, इनकी खुद की भी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं. लवेबल इज वेरी गुड फॉर डेवलपिंग वेबसाइट्स, लेकिन उसको आप बोलो कि पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना है, डेटाबेस इंटीग्रेट करके मुझे ये सब कुछ चाहिए, तो वो नहीं कर पाएगा, या गिव अप कर लेगा, एलुसिनेट करेगा. उस कंपैरिजन में आप देखोगे तो बोल्ट ज्यादा अच्छी तरीके से कर लेता है. Okay. और जब आप कर्सर एआई की बात करोगे तो कर्सर एआई तो आपके गिटहब और उसके अंदर जाके आपके प्रोजेक्ट को मैनेज भी कर लेता है, जो ये वाले प्लेटफॉर्म्स नहीं कर पाते. सो वो केस टू केस बेसिस पे यू नीड टू यूज डिफरेंट टूल्स. सो इन आवर कंपनी वी यूज लाइक ऑल ऑफ देम, क्योंकि हमें पता है हर जगह हो सकता है कि ये मिक्सचर ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड, तो दैट इज समथिंग दैट वी डू. सो एंड देन the main AI developers that comes is like are the one those who have developed Cursor AI, the one those who have developed Bolt, the one those who have developed Chat GPT. Those are the core AI developers in the market. Okay. तो वो niche ही रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज नहीं है जो R&D के नाम पे millions of dollars डाल पाए, बहुत कम है, राइट? प्लस मार्केट अभी इतना बड़ा है AI का कि everyone is trying to do everything. राइट. उस वजह से कैसा होता है कि वो प्रोडक्ट अपनी खुद की वैल्यू लॉस कर लेता है. तो पीपल दोस हु कम एंड से दैट वी हैव एन एआई प्रोडक्ट, और वो एआई ये भी करता है, वो भी करता है, वो भी करता है, तो व्हाट हैपेंस इज लाइक कि उसका जो नीश होता है ना, कि वो एक जगह कॉन्फिडेंट होगा, वो कॉन्फिडेंस उसका एवरेज हो जाता है सब जगह, राइट. सो इफ आई से दैट आई हैव ए प्रोडक्ट दैट कैन रीड इमेजेस, आई हैव द सेम प्रोडक्ट दैट रीड ऑडियो, एंड आई हैव द सेम प्रोडक्ट दैट कैन रीड टेक्स्ट. अगर मैं ये तीनों करना चाहूंगा ना, तो मैं प्रोडक्ट को उस लेवल पे लेके नहीं जा पाऊंगा जहां पर वो इंडस्ट्री रेडी हो पाएगा. एंड मोस्ट ऑफ द एआई कंपनीज यहाँ पर जो है, जो इंडस्ट्री रेडी नहीं है, दे आर एकेडमिक इन नेचर. कि भाई ये करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये आउटपुट आता है. बट व्हेन यू गो टू द मार्केट एंड यू से कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो एआई की जो परफॉर्मेंस है वो एडिक्वेट है ही नहीं. मतलब वो एक्सेप्टेंस लेवल पे ही नहीं है. आप बोल रहे हो हम 85% पे है अक्रॉस, बट सामने वाला बोलेगा भाई मेरा काम तो सिर्फ इमेज रीडिंग का, मेरे को टेक्स्ट से मतलब नहीं, आप इमेज रीड करके दो. दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग. इवन आवर ओन प्रोडक्ट बॉट स्ट्रीम, हम लोग क्यों स्पेसिफिकली पीडीएफ और इन पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज कंपनीज लाइक चैट जीपीटी एंड ऑल, वो लोग भी उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि उन लोगों का काम है जनरल ऑडियंस को कवर करना. तो उनका फोकस ही नहीं है कि मेरे को उस नीश पे जाना है. लेकिन when we are trying to take chat GPT to the level जहाँ पर एक कस्टमर एक्चुअल में उस चीज को, प्रोडक्ट को बाय करे, तो उसके हिसाब से मॉड्यूल या उसके ऊपर रैपर बनने की जरूरत है, राइट. तो रैपर इतना रिफाइन होना चाहिए कि वो एंड में वो रिजल्ट लाके दे पा रहा कस्टमर को, जो एक्सपेक्टेशन है, जो लेट्स से चैट जीपीटी नहीं ला रहा. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट. तो नीश जब आ जाता है ना किसी सब्जेक्ट का, कि इस इंडस्ट्री का ये नीश काम आप पिक करके बैठे हुए हो, वो हर कोई नहीं कर रहा. एवरीवन इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग. और जो नीश कर चुका है, दे आर बीन एक्वायर्ड बाय कंपनीज. जो आपका अभी माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया, मेटा ने एक्वायर किया, ये दे आर ऑल बाइंग द कंपनीज दोस हु आर एक्चुअली इनटू नीश.
Even Perplexity is also doing good. Yeah, absolutely. So someone who want to start career in AI, so what advice you want to give? See, I think what market is saying आज के टाइम में कि you need not to learn coding in order to become an AI person or to become an engineer, but that is not the case. Okay. आपको basics तो पता होने चाहिए. Okay. Always the advantage with the people, those who will get into AI, is their experience Okay. and is their knowledge. इस चीज को आप bypass नहीं कर सकते. There is no shortcut to get into AI directly. Okay. And as I said कि AI main developers जो हैं, they are so less in the market. फर्स्ट चीज क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, प्लस उनको नॉलेज बहुत स्ट्रांग चाहिए होती है, राइट. प्लस एआई अपने आप में बहुत वर्सेटाइल है. तो कोई डेवलपर अगर डीप लर्निंग में है, राइट, या कंप्यूटर विजन में है, जो वीडियोस पे काम करता है, वो स्टॉक मार्केट पे काम नहीं कर पाएगा या वो टेक्स्ट पे काम नहीं कर पाएगा. तो अगेन विद इन दोस लेस डेवलपर्स अगेन एक नीश जनरेट हो जाता है कि यू नीड समवन हु कैन वर्क ऑन वीडियोस. बट आपको मार्केट में जो कैंडिडेट्स मिल रहे हैं उन्होंने वीडियोस पे काम तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऑडियो पे काम किया कर लिया. तो ये लेवल के फिल्टर्स आ गए, राइट. सो उस वजह से फॉर अ न्यू गाय टू गेट इनटू एआई इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. फर्स्ट यू नीड टू नो द टेक्नोलॉजी. पाइथन आपको आनी चाहिए, राइट. कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, ताकि आप जब प्रॉम्प्ट पास करोगे तो आपके प्रॉम्प्ट भी उतने स्ट्रांग होंगे, बिकॉज आपको पता है कि ये सामने वाला जो है, जो बेसिकली एआई है, वो कैसे सोच रहा है. अगर आपको ये पता है वो कैसे सोच रहा है, तो आपको उसको गाइड करना इजी हो जाता है, ठीक है. एंड सेकेंड वन इज एक्सपीरियंस. कि आप ये बहुत डिफिकल्ट होता है किसी एआई इंजीनियर के लिए कि वो अलग अलग चीजों में काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो होगा एक्सपीरियंस के साथ. उसको हर एआई के मॉडल के अंदर घुस के आपको 3-4 साल काम करना होगा. तो हम लोगों ने जितने एआई मॉडल बनाए, इट्स बीन लाइक आई थिंक क्लोज टू 3 years और 4 years. आज भी हम लोग उसको रिफाइन ही कर रहे हैं. एंड पीपल दोज हु स्टार्टेड 3 years बैक हुआ आज भी वही काम कर रहे हैं. बिकॉज आपको मॉडल को रिफाइन करने के लिए इतना डेडिकेशन डालना पड़ता है उसके अंदर कि आपको बार बार उसको लर्न कराना पड़ेगा, तभी वो एक गो टू मार्केट रेडी प्रोडक्ट बनेगा. अदरवाइज अगेन वो एकेडमिक में ही रह जाने वाला है. दैट इज व्हाट विल हैपन. एंड देन as a newcomer to the industry, you should know how to use platforms like Cursor. Lovable पता होना चाहिए, बट Lovable Cursor का कोड देख के बेसिक समझ में भी आना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ प्रॉम्प्ट पास कर रहे हो, स्क्रीन दिख रही है, बट आपको आगे पीछे कुछ नहीं पता. इसलिए यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज. आपको पढ़ाई पे फोकस करना है. एंड ट्राई टू, दैट्स अ रिकमेंडेशन टू ऑल द फ्रेशर्स इन द मार्केट, ट्राई टू क्रिएट 1 or 2 प्रोजेक्ट्स जो आपने खुद पे बनाए. इट कुड बी एनीथिंग. आपने यूट्यूब का क्लोन बनाया, आपने जीमेल का क्लोन बनाया, इट्स फाइन. और उसमें ट्राई करो कि आपने एआई को भी थोड़ा यूज किया है. उससे कैसा आपकी लर्निंग होगी. प्लस एनीवन हु इज गेटिंग हायर्ड इन द कंपनी एज अ फ्रेशर, एज अ कंपनी हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि व्हाट एक्स्ट्रा दिस पर्सन हैज डन. और वो एक्स्ट्रा तभी होगा जब आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं जो सिर्फ पेपर पे नहीं है, राइट. कि आपकी इंटर्नशिप थी तो आपने सिर्फ पेपर पे ले लिया, वो नहीं. आप उस चीज को राइट तरीके से यूज करो. Try to build, try to break, and try to come back again with a stronger statement, because companies are going to ask कि आपने क्या किया था, and you should be into a good position to demonstrate कि क्या हुआ था. That gives a lot of So after support. this AI, what are the new job roles are emerging actually? So new job roles में I think I can there will be people those who will be learning a skill on how to control AI. ठीक है. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज समथिंग जो फोकस में है लोगों के, राइट. सो दैट विल हैपन. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अवर इंडस्ट्री, सो वी हैव लाइक लेट्स से 80-20 का रेशियो. 80% डेवलपर्स, 20% ऑपरेशन स्टाफ है हमारे पास में. सो दैट इज गोइंग टू चेंज. सो जॉब रोल के नाम पे कुछ नया नहीं आने वाला है. स्किल सेट इज गोइंग टू चेंज. सो व्हाट विल हैपन अपेरेंटली कि आईटी के अंदर ये हो सकता है कि 40% आर ऑपरेशन टीम, जिसमें एनालिस्ट और ये सब हो गए, और 60% कोडर्स है. अच्छा. और वो जो 20% का शिफ्ट है, वो हो सकता है कि डेवलपर्स खुद ही शिफ्ट हो गए, बिकॉज दे नो कि दिस इज ए फ्यूचरिस्टिक थिंग जो होने वाली है, और दिस इज द न्यू एरा ऑफ कोडिंग इन द मार्केट. सो जॉब्स कुछ नई इवॉल्व होंगी. उसमें सिर्फ यही है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स और ये होने वाले, बाकी आपका जो रेशियो ऑफ पीपल है और स्किल सेट ऑफ पीपल जो है, दैट इज गोइंग टू चेंज फॉर श्योर. सो आई थिंक देयर इज अ टैलेंट गैप. एब्सोल्युटली, राइट. बिकॉज अब जो स्टडी कर रहे हैं वो तो अभी तक तो एआई आया नहीं है. Correct. कि आप स्टडी में क्या आप एआई करो, एक
और जैसे ही वो मार्केट में आ रहे हैं दे हैव टू आपको इंटर्नशिप या फ्रेशर में एआई में ही काम करना है, तो दैट्स आई थिंक चैलेंज फॉर Correct. Yeah. So that's a challenge for Indian IT, industry, because as I said कि हम लोगों के पास में R&D का बजट होता ही नहीं है ओके कि हम लोग हमारे रेवेन्यू का X% R&D में डाल रहे हैं, जिससे हम लोग खुद सेल्फ इवॉल्व हो रहे हैं. वी आर वेरी मच फोकस मोर अबाउट क्रड ऑपरेशंस. ठीक है. जबकि जहाँ पे भी R&D और ये एक्सपेंसेस है वो मोस्टली लेट्स से यूएस की कंपनीज कर रही है. दे आर इन्वेस्टिंग लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन. लेकिन हम लोग आज भी वो क्रड ऑपरेशन में ही काम कर रहे हैं. बट अपेरेंटली कंपनीज हैव रियलाइज नाउ कि अपस्केल करना ही पड़ेगा. अपस्केल में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप खुद का कुछ बना दो या तो जो बना बनाया वो यूज कर लो. एंड मोस्टली आई बिलीव कि इंडिया में जो होना है वो बना बनाया यूज करना है. ओपन एआई हम लोग यूज करेंगे, कर्सर यूज कर लेंगे और फिर हम लोग लोगों को डिलीवर करना चाहेंगे. तो मेन कोर एआई मॉडल्स जो होंगे वो हम डेवलप नहीं कर रहे होंगे. उसको यूज करके डेवलपिंग द एंटायर प्रोजेक्ट इनटू अ फैशन कि एंड यूजर उसको यूज कर पाए, वहां पर हमारा रोल होगा. राइट. So what I believe, like education system need to improve, and I think अभी upcoming years में that will be like ये सब AI आ जाएगा. Yes, government already realized that long back. अब तो आपको schools में भी AI as a component तो पढ़ाया जाता है. When we were also in college तो उस टाइम पे भी AI as a subject था, but we had no idea कि AI इतना strong हो जाएगा. अच्छा. क्योंकि चैट जीपीटी के पहले तो AI है ये पता था, AI क्यों है नहीं पता था. लेकिन अब जो बूम आया है, राइट, सो दैट इज व्हाट द स्पीड इज. सो चैट जीपीटी 1.0 आया, फिर 2.0, 3.0, 4.0 जितने भी आ रहे हैं, राइट. सो हर वर्जन को आने में कम टाइम लग रहा है. चैट जीपीटी 1 took 10 years, 2 took maybe 1 year, 3 might have taken only 6 months, 4 might have taken only 3 months. तो दिस इज द स्पीड. तो वो जो एलिवेशन है ना, उस एलिवेशन के हिसाब से अपना स्किल सेट जो है इंडिया में अपने यूथ का, वो इतना इवॉल्व नहीं हो पाया. So we definitely have to think. फ्यूचर में आ रहा है बिकॉज कैसा है कि जैसे मेरी डॉटर है, शी इज इन 3rd स्टैंडर्ड. करेक्ट. अभी से उनको एआई का नॉलेज देना चालू कर दिया है कि भाई चैट जीपीटी क्या होता है, बेसिक्स क्या होते हैं. इवन माय डॉटर यूज चैट जीपीटी में उसको आंसर सॉल्व करने होते हैं. राइट. इवन आई हैव सीन लाइक वो डीपीएस में, तो वो वहाँ पे अब 6-7 स्टैंडर्ड्स में भी रोबोटिक्स के लेसन्स हो रहे हैं. करेक्ट. तो अब मतलब स्टूडेंट्स को भी ऑफर दे रहे हैं कि आप एक मतलब आप 6-7-5 स्टैंडर्ड में हो तो भी यू कैन टेक द वर्कशॉप्स, और आपको अगर कोई रोबोटिक्स में एआई में कहीं पे कुछ करियर जैसा सीखना है या कुछ स्टार्ट करना है तो यू कैन स्टार्ट इट. सो आई थिंक वो बेस में चालू तो हो गया है. करेक्ट करेक्ट. सो उसमें कैसा है ना कि सॉफ्टवेयर्स मोर और लेस सूनर और लेटर विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई, क्योंकि हेवी लिफ्टिंग हो रही होगी. राइट. बट हार्डवेयर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा एआई इतना जल्दी. तो दैट इज व्हाई रोबोटिक्स एंड एवरीथिंग इज सो स्ट्रांग कि आप रोबोटिक्स में रोबोट के अंदर एआई डाल रहे हो, लेकिन रोबोट खुद एआई नहीं बना रहा. इट इज गोइंग टू, ये नेक्स्ट लेवल के काम होंगे. राइट. राइट. सो दैट इज व्हाई the institutes are training their people into a fashion की how to sustain in future in the market, right? Market जिस वे में change हो रहा है, जिस वे में back offices reduce हो जाएंगे because most of the time agentic AI जो है आपकी वो काम कर रहे होंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सही बात है. Right? So there is a movie which I would like to suggest, that is WALL-E. अच्छा. Right, one should definitely watch. WALL-E is an animated movie that talks about what will happen in maybe like 2050 and on, and you will realize कि that is something that have already taken a step. So चालू हो ही गया दिख रहा है. and everything like things will be done, homework will be done by AI. ठीक है. And when I say homework means घर का जो घरेलू काम और ये सब है वो सब AI कर रहा होगा. आज के टाइम में आपके पास में स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, राइट. वो कैमरा लाइडर के साथ में आपके घर में पूरा मॉप और ये कर लेंगे. वो यू विल फाइंड इट वेरी कॉमनली ओवर हियर. बट नाउ आपके पास में रोबोट्स आने वाले हैं. दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट एवरीवन इज प्लानिंग, राइट. अभी यूनिट्री करके देयर इज अ कंपनी इन चाइना, दे हैव लॉन्च्ड अ रोबोट फॉर $6,900. मतलब 4.5 लाख रुपए का उन्होंने ओपन सोर्स रोबोट ले आए वो. So you can edit, you can guide them what needs to be done, but now that is the area jab everything comes in place ki you should not tell them how to fight or how to use a gun,
right? That is the Robotic area is- where the government comes in place. Right. कि boss, we know you have a good thing for you that is going to help you for your household work. वो आपके लिए आयरन कर देगा, वो आपके लिए झाड़ू लगा देगा, बट आप उसको ऐसे बोलो कि यू नो कोई वेपन कैसे चलाना है तो फिर वो वेपन भी चला लेगा. तो दोज आर द एरिया जहाँ पर robotics. that is a sensitive area. But yes, robotics is something which is definitely not going to be replaced by AI very soon. But robotics use कैसे करना है वो AI will think. और Okay. AI hallucinate करता है कई बार, it tries to bluff you. आपने अभी recently last week की एक न्यूज़ सुनी होगी कि there is a AI जिसने पूरा database clean up कर दिया और जब उससे पूछा तो झूठ भी बोला और वो करता है ये चीज. डिलीट हुआ आई थिंक रिप्लिट में कुछ डेटा. यस यस एब्सोल्युटली. और वो करेगा जब उसको ये पता पड़ेगा कि ह्यूमंस आर नॉट स्मार्ट इनफ, तो वो ट्राई करेगा हेलुसिनेट करने का. वो हेलुसिनेट आज भी करता है. दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग दैट वी हैव इन एआई कि एआई हेलुसिनेट. ओके. Right? So if I ask that who is the Prime Minister of India, he will say Mr. Narendra Modi is the Prime Minister of India and he was born in Gujarat and nothing has been asked, but वो ज्ञान देगा आगे से. ज्ञान दे. Right? So कैसा हो रहा है कि academic project to go to market and production line project में ये gap आ रहा है जहाँ पर we are playing a vital role by our products, जहाँ पर हम लोग उनको ये गाइड करते हैं कि भाई तुम्हें मार्केट से डेटा नहीं लेना है. True. एंड दैट इज द एरिया. सो कैसा है कि एआई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी सर्च कर लेता है, वो कुछ भी सर्च करके लेके आके दे देगा. अच्छा. राइट? और उसकी ऑथेंटिसिटी है कि नहीं पता. उसको तो मिला, उसने बोल दिया. उसके एक पॉलिसी में क्या लिखा होगा कि वॉट एवर आई एम सर्चिंग इज लाइक गुड टू एक्चुअल्स बट डोंट बिलीव इट. वो तो अपनी पॉलिसी में लिख देंगे ओपन एआई. लेकिन क्या वो सही है? सो आई विल गिव यू द केस. लेट्स से आई वांट टू क्रिएट ए डिस्प्रिन मेडिसिन. अब मैं मेडिसिन का ब्रेकअप पूछा हूँ कि इसमें क्या क्या होना चाहिए. उसने कहीं पे व्हाइट पेपर पढ़ा, कहीं पे कुछ समझा, वो लाके दे दिया. Okay. अब उस पेपर में जो भी कॉन्फ़िगरेशन थे कि इतना इतना यूज होना चाहिए जो भी आपके एलिमेंट्स है वो, बट दैट इज बीन मॉडिफाइड नाउ बिकॉज Okay. उससे कुछ साइड इफेक्ट है, ये को पता ही नहीं है. वो तो आपको बोल देगा कि बना दो इससे कुछ. सही बात है. बट दैट इज नॉट ट्रू. राइट? उसको ये नहीं पता कि इसके बाद में 4 चीजें और है, वो अभी एआई नहीं समझ पाता है. Right. राइट? सो दिस काइंड ऑफ थिंग कि उससे क्या साइड इफेक्ट्स होंगे या उससे क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, दैट यू हैव नो आइडिया. So Pallav, I heard lots of rumors about the AI. So what message you pass to the YouTubers and creators, because they are spreading many things which are I think humors or which are right or wrong. So what's your take on that? See, the irony is like even the IT industry itself is hallucinating on AI. उनको भी लगता है कि सब हो गया. कहीं कोई चीज देखते हैं, जैसे लवेबल हमारे पास में जब एक्सप्लोर किया तो लगा लवेबल आ गया, अभी तो फ्रंट एंड डेवलपर्स तो आर गॉन. बट दैट इज नॉट द केस. द मोमेंट वी स्टार्टेड पुटिंग दैट इनटू द रियल वर्ल्ड, समझ में आ गया कि लवेबल अभी इतना नहीं हुआ है. राइट? बट डेफिनेटली डज इट हेल्प? यस, डेफिनेटली इट हेल्प्स. सो the case is like it is very difficult for a non-techie to understand कि क्या AI है और क्या नहीं है. अच्छा. But what they can do is like they can always rely on the channels जो Okay. actual में facts देते हैं, जिसकी credibility है. Okay. ठीक है? So to give you an example, जैसे there is one Marcus Brownlee, MK PhD, right? Okay. So if he is telling something about WWDC, right? तो वो सही होगा. आपने एप्पल का कोई प्लेटफॉर्म देखा जहाँ एप्पल के चैनल पे कुछ अपडेट आई है, देन यू शुड टेक इट अप. बट कुछ लोग कैसा करते हैं, यूजिंग VFX एंड एवरीथिंग, दे विल ट्राई टू क्रिएट समथिंग एंड देन से कि ये एआई ने कर लिया है. बट वैसा नहीं होता. अनफॉर्चुनेटली द केस इज लाइक कि इन्फ्लुएंसर्स आर सब्जेक्ट टू ऐड सम मसाला इन देयर थिंग, अदरवाइज कोई उनको सुनेगा नहीं. राइट? सो दैट इज द प्रॉब्लम. बट दे विल हैव टू be responsible enough to their viewers कि वो उनको गलत नहीं बता रहे. Right. And I would suggest कि अगर ऐसा कुछ है, then it should be given as a note by the influencer statement कि this could be correct or this might not be correct, or these are the sources from where the data has been gathered. Okay. So that is something that influencers have to do. So YouTubers and everyone who is around, so these are the youth, those who are actually training the upcoming youth that is coming up, right? Okay. And even manipulating people's mind, Okay. right? So अगर आपने गलत बोलना चालू कर दिया,
राइट? True. और लोग आंख बंद के भरोसा करते हैं, आंख बंद करके भरोसा करते हैं. मतलब अगर ऐसा बोला कि लेट्स से इंडिया से श्रीलंका के लिए देयर इज अ रूट दैट इज कमिंग राम सेतु के थ्रू, हाँ, राइट? और 5 इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया जिनके पास 10-10 लाख फॉलोअर्स हैं, तो वो वायरल हो जाएगा पूरी जगह, right, जबकि हाँ, वो न्यूज ही नहीं है, बट किसी ने बस ऐसा छोड़ा था और सबने वो समझ लिया. नाउ एआई, क्योंकि सब लोगों का वाव फैक्टर वाला पार्ट है कि भाई एआई आ रहा है मार्केट में, एआई आ रहा है, तो वो लोग फिर बेसिकली कुछ भी हल्का कुछ सा भी, पास कर देंगे. हाँ, तो वहां कहीं ना कहीं पे वो गलत है रेस्पॉन्सिबिलिटी आती भी आती है कि हम्म, आप वो चीज मत बोलो जिस पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, या तो आपने खुद ने नहीं देखा है. तो okay, गो ट्राई टू हैव अ लुक, उसके फैक्ट समझो, एआई से ही पूछो कि ये करेक्ट है कि नहीं. अच्छा, एआई हेलुसिनेट करता है लेकिन करेक्ट और सही तो बता देगा right, कि ये फेक है, ये करेक्ट है. तो that's true, राइट okay, इट, यूज इट करेक्टली, बट इट इज गोइंग टू बी अ टफ थिंग टू रियलाइज कि व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट. true, Yeah. right. So now the question is how to start a business. See, in order to start a business and run it properly, I personally think that you need to follow 4D, right? So first thing is like you need to determine what you want to do, right? And then you need to be dedicated about it. So something that you love irrespective of thing. The next one will be discipline. Discipline comes is like there's something that you don't like to do, but it is mandate for your business to run properly. Okay, And then the fourth one is drive it properly. okay, So it starts from determination, then dedication, then discipline and drive. These Okay. things are going to help you out. क्योंकि कुछ चीजें होगी एज एन एंटरप्रेन्योर आपको लगेगा कि मैं सही तो कर रहा हूँ, बट नहीं होगा, वो सही नहीं होगा. आपको वो डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा, जो आपको खुद को मोल्ड करना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये फोकस करना ही करना है. एंड दैट इज वाई डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन बोथ आर पार्ट ऑफ इट. आप सिर्फ एक को लेके चलोगे तो आप नहीं कर पाओगे आगे. तो आइए आजकल के स्टार्टअप्स को आई थिंक सीखना चाहिए. यस यस, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल हैव टू डिटरमाइन. आप बिना टारगेट के कुछ नहीं कर पाओगे. अच्छा, If there is a podcast that is happening right now, and if you do not have in mind that you need to have, let's say, 1 million followers in next 1 year, आप उस हिसाब से रिवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. और ये लाइफ का पार्ट है. आप कुछ भी चीज सोचिए, आप अपने यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, दे वांट टू क्रैक आईआईटी, तो उस हिसाब से पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं, राइट? अगर उनको पता ही नहीं आईआईटी क्रैक करना, तो वो क्या ही पढ़ेंगे. सो देयर इज ऑलवेज ए माइलस्टोन दैट शुड बी देयर इन योर माइंड इन ऑर्डर टू डू कि चलो ये करना है मेरे को नेक्स्ट. उसी हिसाब से आप अपने आप को मोल्ड करते हो. 6 पैक एब्स बनाने हैं तब तो जिम जाके एक्सरसाइज करोगे, नहीं तो आप क्यों जिम जाओगे? इट्स लाइक दैट. सो बिजनेस का इट इज लाइक दैट, एंड यू हैव टू बी कंटिन्यूसली इवॉल्विंग. आपको इवॉल्व करना पड़ेगा. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जेनजीज, राइट? सो जेनजीज अभी जितनी वॉल्यूम में है किसी भी कंपनी में इंडिया में, सो अकॉर्डिंगली हम लोगों को हमारी पॉलिसी अपडेट करनी पड़ती है. पहले इट वाज कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम था कंप्लीट, राइट? जेनजीज ने वही देखा है उनकी स्टार्टिंग करियर में, उनकी जॉब ही वर्क फ्रॉम होम से लगी है, राइट? तो आज की तारीख में अगर हम ये पॉलिसी कर देते कि नहीं आपको मैंडेट ऑफिस आना है, देन पीपल माइट नॉट बी कंफर्टेबल विद. अगर हो भी गए तो आज होंगे, 2 साल बाद तो नहीं होंगे. तो यू हैव टू कीप दैट फ्लेक्सिबल कि ठीक है चलो ऑफिस आना मैंडेट भी है, 3 दिन आ जाओ, 5 दिन आ जाओ, या फिर आप महीने पूरे साल में 30 दिन वर्क फ्रॉम होम ले लो, 40 डेज वर्क फ्रॉम होम ले लो. यू हैव टू कीप इट फ्लेक्सिबल. यू हैव टू कंसिडर कि दे ऑल्सो हैव देयर पर्सनल लाइफ, तो वो ध्यान रखने की जरूरत है. एंड यू ऑल्सो हैव टू कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस कि यार हम जब जॉब कर रहे थे तब तो ऐसा था. यू कैन नॉट इम्पोज दैट ऑन द न्यू जनरेशन स्टेटिंग कि भाई हमारे टाइम तो 1 ही दिन की छुट्टी मिलती थी, तुम्हें 2 क्यों मिल रही है? हमारे टाइम तो हम 6 डे वर्क काम करते थे, आज 5 डे चल रहा है, राइट? सो वर्ल्ड चेंजेस एंड सो यू विल हैव टू, अदरवाइज आप ऑब्सोलेट हो जाएंगे. हाँ, मतलब ना एआई और एआई एरा चल रहा है, जेनजी एरा चल रहा है, तो यू मस्ट हैव टू अडॉप्ट द रूल्स रेगुलेशंस, नए सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा. यस, द ओनली थिंग इज लाइक कि आपका जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन होना चाहिए, राइट? ट्रू, वो ध्यान रखने की जरूरत है. आप पूरे लूसिड भी नहीं हो सकते. तो देयर इज ए दैट यू ऑलवेज नीड टू मेंटेन अ टेंशन. सो इफ देयर इज अ थ्रेड और दोनों हाथ में अगर आप उसका थ्रेड बराबर नहीं रखोगे, टेंशन मेंटेन नहीं रखोगे, तो या तो लूज हो जाएगा, और बहुत स्ट्रेच कर दिया तो ब्रेक हो जाएगा. तो एक स्टैंडर्ड टेंशन मेंटेन होनी चाहिए. तो डिसिप्लिन भी सिखाना है आपको लोगों को अलॉन्ग विद देयर फ्रीडम, राइट? So अगर if someone wants to go on a holiday and you have a client coming from US जिनके main POC वो Gen Zs हैं, then you have to tell कि boss you have to think, right?
ये उनको गाइड करना पड़ता है, Correct. बट दे डू रियलाइज एंड देन दे एक्ट Do it, अकॉर्डिंगली. right? बट इट इज इम्पोर्टेंट कि अपन एज ए मेंटर उनको वो चीज जरूर सिखा रहे हैं विच इज इम्पोर्टेंट फॉर देयर करियर. Right. It is not like कि वो आपके साथ ही रहेंगे लाइफ लॉन्ग, बट मे बी इन फ्यूचर दे माइट जॉइन सम अदर कंपनी. सो at Bombay Software we have that as the main thing कि something that we realized when we were doing job कि हमारे पास individual focus नहीं था हमारी कंपनी का, Right. but we keep that individual focus to all the individuals कि Hmm. आज वो अगर upskill कर रहे हैं तो वो कंपनी के लिए भी अच्छा है और उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है. So अच्छा. that is a part of our KRA of every employee कि you have to learn something at your own. Right. True. वो important. Thank you, Pallav. Now let's have some fireside chat, and Okay. you have to answer in one word or very small one. Okay. Right. Hmm. So, is AI dangerous or beneficial to humanity? That depends on how you're going to use it. That's true. So, what are the 3 books that profoundly shaped your understanding of AI and leadership? So there are a lot of books. Unfortunately, I don't read much books. I go with the practical scenarios. So I go to webinars and I attend seminars. Then I attend YouTube tutorials. Okay. So those kind of thing is what I am more into. So books को लेके I am not very much into AI part Okay. क्योंकि market में अभी दूसरी तरीके से और ज्ञान Okay, available है and that is good enough for us to Correct. proceed. Right. So, what does your morning routine look like? How do you stay grounded? So I wake up like close to 7 in the morning. Then I have a lot of pets. So I spend time with my pets. Then I go to do basic workout, followed by my studies, which I am pursuing at the moment. Okay. And then office time, 10 to 8, come back, then be with family, watch TV, meet with your friends on regular basis, and then yeah, call it a day. So, any funniest AI failure you know? Funnest AI failure as such. There are a lot of AI failures that happens, Okay. but I think hallucination is the Biggest. is the biggest fun that comes across. Okay. आप 4 बार उसको बोल दो, 5वीं बार वो वही मान के आगे बढ़ जाएगा. तो मान जाएगा. That's वो right. चीज उसकी रहती है. And have you received any compliment for your AI work? Yeah, absolutely. So we have been receiving basically client recommendations and references basically based on the work that we have done. We are currently working with ENY as their AI partners. So उनका जो काम चल रहा है उसमें we are involved. We are working with the government of Canada in order to implement smart dustbins and creating the routes, right, for the pickup trucks in a AI model. So we are also working with them. So this gives us the validation in the market. So telematics is something जहाँ पर हम लोग अभी AI introduce कर रहे हैं in order to make the countries go green. So every country have their own oath that they have taken कि Okay. this is what we are going to do. हम carbon emission ऐसे कम करेंगे. So such kind of things that we do that helps to reduce the carbon footprint, right? Mhm. So that is the area where we get a lot of recommendations. That's great, actually. If 2010 Pallav met 2025 Pallav, what would be he say? So I think I would have told me to pursue engineering. Okay. I am a management graduate. Okay. Then in my post graduation, I did my study into business analytics, where I learned coding a little bit. So ये थोड़ा upside down हो गया because I had no clarity what needs to be done, right? So and then at that time I had the thought like how most of the students had that time कि यार engineering clear होगी नहीं होगी पता नहीं है, right? But that is not the case. It is simple. अच्छा. The case is like it is if you understand how to connect dots और फैक्ट समझ में आता है आपको तो आप आराम से कर सकते हैं. अपेरेंटली द करंट वर्ल्ड विच इज अराउंड उसके अंदर तो आपको वो कोडिंग रिलेटेड उतना अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है. मतलब सो दैट इज व्हाट आई वुड हैव टोल्ड पल्लव कि ये चीज कर सकता है कि इंजीनियरिंग कर ले उसके बाद मैनेजमेंट करना. मैंने मैनेजमेंट पहले किया देन आई गॉट माई सेल्फ इनटू कोडिंग अ बिट. So what legacy do you hope to leave in the tech world? I think if possible we would like to give
open source libraries back to the tech world and something that is good for people to use Okay. in terms of making more sense in the market. So our first product, which was basically for education, helping students around. So Okay. anything which is coming up with a social cause behind it is something that we would want to leave in the market. Okay. So if you could start a business tomorrow, what would be that business? That would depend. Yeah, means what I have realized over the period while doing business is like money lies everywhere. If that is the Right. main motive, it lies everywhere. It is all about ki where you see yourself fit in. Okay. So I have worked into multiple industry. I started in hospitality. I worked in with hotels. I worked with IIM Ahmedabad. Then I worked with Bharat Petroleum. Then I worked with oil and gas companies in Australia. So अलग अलग जोन से घूमते घूमते आके ये समझ में आया कि एंड ऑफ द डे एवरी बिजनेस इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ROI. Okay. कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, आपका रिटर्न कितना है, कितना प्रॉफिट कमाया. एवरीवन टॉक्स दैट, राइट? So you are investor as well, right? Yes, we do invest. So a couple of products in which we invested by self and as an angel level in order to kick that project up, and then we raise fund in the market and then got our returns. So basic level के जो investments होते हैं, that is Okay. something that we do. Okay. So what inspired you to stay fit and healthy? My dedication towards my work, where I have to be very uptight in order to make sure that my company is growing well, is something that helps me out to stay fit. Plus, when you stay fit, you feel there's a positive vibe which is around. So that is another thing. And then to spend time with your families. So I think Right. your business, your families, those are the main core reason for which one would want to stay fit in order to have a better life. Right. So the next $1 billion idea nobody's talk about. I think people are already talking about it, but next $1 billion idea would be taking people outside Earth. Correct. That would be the next billion idea. Top 3 AI tools for solo founders. I think they should use AI tools like Read AI or Fireflies in order to keep the records of their conversations. Okay. बिकॉज सबसे ज्यादा वही होता है कि कहीं ना कहीं पे वो बिटवीन द क्रैक्स हो जाता है और आप भूल जाते हो वो एक काम और करना था. तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी गुड. देन AI टूल्स में I think if you are a developer, then you should use tools like Cursor AI and all. Okay. And if you are not a developer but still you are around, आपका मेजर काम जो होगा वो आपका टाइम मैनेजमेंट का है. किसी भी फाउंडर के लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो यू शुड बी यूजिंग tools like Fireflies, Read AI, and then you should be keeping your own books. Like अब आप उसमें AI में Siri भी AI है, right? So आप आपके reminders वो सब उधर maintain करके रखो. So that is something which is important. Right. So what's one AI trend you believe will crash and burn in 2027? Yeah, so if you have seen the latest report in the market, that it is been said that most of the projects are going to collapse in 2027 because of overcommitment. Okay. हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे. गार्टनर का अभी रिपोर्ट आया था which if you see, उसमें यही था कि most of the projects will get crashed because the AI that we have created is generalized and it is not niche. तो वो जनरलाइज की वजह से वो एक लेवल के ऊपर जा ही नहीं पाएगा, इसलिए फेलियर्स है. और अभी जो कमिटमेंट करके जो प्रोजेक्ट्स पुल कर रखे मार्केट में, उसमें कंपनी ने बोला सर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, जबकि वो होने में बहुत टाइम है. तो 2027 इज द टाइम जहाँ पर एक व्हाट आई से मार्केट विल गेट बैक इनटू ए रिकंसिडरेशन एंड वहां पर वापस से ये चीज देखी जाएगी कि AI इतना ही कर सकता है, ह्यूमन तो रहने वाले. True. Yeah. So what's one secret question you wish every startup investor asked about AI, and how would you answer it? So a secret question would be like, is it your own AI या फिर कोई और use कर रहे हो existing library? That would be a secret question, because as an investor also I would ask the same thing कि आपने खुद ने बनाया है कि आपने open source ले लिया और बना दिया, और अगर open source लेके बनाया है तो is your business model good enough to be used? So thank you, Pallav.
It's my pleasure to came here and you shared the visionary leaders. You shared the many things about AI technologies, and hope the users will like it and they will ask the questions to you. And if anyone want to learn more about AI or want to expand more, I think they can connect to you and get it more about you. Yeah, thank you, Harry, for having me around. And people can connect me on LinkedIn. I'm very much active over there. Juniors, those who are getting into the industry, feel free to connect. Means लोगों को बात करने में कोई डर नहीं लगता है. But the only point is like कि हमारे पास शायद उतना टाइम नहीं होगा, तो we might be late in responding. But ऐसा नहीं है कि हम respond नहीं करेंगे, because the youth that we have in the country, आप कहीं ना कहीं पे, you are the future of our country, so we would True. want you to be smart enough. That's true. Thank you. All right, thanks. Thanks.